When the customer requirement gets changed, that is fail. Okay, so again we have to do the same process for the all these phases, right? So when we go for the waterfall model, so when the requirement is fixed, incremental, okay, the same about the waterfall, but here having the iterations, that is what incremental. We can follow the here incrementals, okay, multi waterfall cycles there will be there. Okay, so in each cycle we creating software. Okay, okay, so then prototype model. So prototype also the useful, gather the requirement and build a prototype and take the customer evaluation. Okay, then refine the requirement, design the again software and build a prototype till until the customer is get satisfied. अगर सब बराबर ठीक है, so नहीं and the customer is saying now we are going to stop, then we are going to take this requirement and we are going to start the actual building of software. Okay, all these phases, designing, development, testing. Okay, and prototype models. Okay, then spiral model. So in this model the risk can be analyzed here, that is most important thing. Okay, every spiral having the cost, so जितने spiral बढ़ेंगे उतना cost बढ़ेंगी, और in the every spiral they are एनालाइजिंग द रिस्क. ओके, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जितना रिस्क वर्ड यहाँ पे आएगा तो वो स्पायरल मॉडल में ही आएगा. ठीक है, तो रिस्क एनालिसिस मोड पे बहुत फोकस करता है, और स्पायरल मॉडल में जितने भी फेजेस है वो सब फॉलो हो रहे हैं, लाइक वाटरफॉल. ओके, इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव आल्सो. Okay, then here also the requirement get analyzed, then defining the protocol. Okay, so prototype models, this is the combinations also in the spiral model. So this is one phase for the risk analysis. Okay, so we are going to do here the planning, requirement analysis, anything. So this cycle is get start from here, and here the designing the prototype with based on the risk analysis. Okay, then here the engineering is done, means development and testing, and give the customer evaluation. Okay, then again take the requirement and do the another spiral. Okay, so each spiral having taking the cost also. Okay, so these are the main phases are involved. So that is what advantages is changes can be done the latter stage. Okay, so next one is RAD or RAID. So that is rapidly development. So here the we will get the product software in the very short time. Okay, our cycle be short रहेंगे, but this sudden is not useful for the system that can be प्रॉपर्टी मॉड्यूलराइज. ओके, जहाँ पे जब से ज़्यादा मॉड्यूल्स होते रहेंगे वहाँ पे यूजफुल नहीं है. देन इन द मॉड्यूल, ओके, रैट डेवलपमेंट मॉडल में हम रीयूज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द वन स्टेज ओनली वी टेक द रिक्वायरमेंट एंड डू द प्लानिंग, एंड देन वी आर गोइंग टू design the module based module. Okay, so in the modeling, go for the business modeling, data modeling, process modeling. Okay, so that is module based. Then we go for the engineering, means construction. Okay, then construction component, we are going to reuse the same component and we can write the automatic code. Okay, so same construction, then again modeling we are taking from here. Okay, so we are reusing the all this component again and again. Once all this we get the module, then we are going to deploy and integrate the all module and we can give the delivery. Okay, module by module and reuse the module. Then next we have seen, that is very important, that is what V model. Okay, so here in the V model, the same phases is involved. That is what requirement analysis, designing, testing. Okay, all these things are involved. But in the V model, what is going to be happen? That is what simultaneously the each model, each phase, we are going to do the testing. That is very important. Once gather the requirement, okay, that is what static means, known as the verification. Okay, static verification means static and validation means dynamic. Okay, so requirement gathering, requirement analysis, after the tester is also involved. Okay, to do the verification. Then also the next one is architecture design, design the all architecture. Okay, so some modules are there, database design, UML design, whatever, all this design, details of the design, and again you can test. Okay, design, detailed design. Okay, then code and unit testing. Now the product is here, so now we are going to test the unit testing as well as the testing. Okay, so once this is done, then the tester is also involved in this phase, and here they are also do the testing. Then software integration means integration testing, all these modules are integrated properly or not, also we are going to do. Okay, the developer is also do and tester also do system integration. Okay, that is also do. And at the last stage, so acceptance testing can be done.
Okay, so for the each and every stage developer will involve, after that tester is going to be involved. Okay, so simultaneously it will work. Okay, simultaneously it is going to be work, developer is doing, after that directly tester is involving. Okay, that is testing is done. So the long प्रोडक्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके, सो यूजफुल नहीं रहेगा ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट, मतलब क्योंकि इसमें टीम चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ओके, सो वी मॉडल में हमेशा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन याद में रखने का. Okay, that is verification is static and validation is dynamic. And the most important, that is 100% important, that is what agile methodology. Okay, so this is 90% nowadays companies using the agile model. Okay, so why the company is using the agile principles or agile model? Because the customer requirement are changed and it is very accepted, and the customer get the build or software. Okay, within the time period, means pieces of software will get. Okay, waterfall model में client को software कब मिलेगा? Yes, waterfall model में client को software कब मिलेगा? पूरी प्रोसीजर होने के बाद। So it will may take the 1 year 2 year, है ना? लेकिन उस तक अगर मान लो कि उसका 3 ईयर का ड्यूरेशन है, सो हम कस्टमर को बोल दिया हमने कि 3 साल के बाद आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, लेकिन कस्टमर को ये पता नहीं रहेगा कि मेरा प्रोडक्ट कितना हुआ, क्या मैं उसको देख सकता हूँ क्या. ओके, ये प्रॉब्लम है. ठीक है, तो अजाइल मॉडल में कस्टमर गेट सेटिस्फाइड बिकॉज so customer taking the requirement, so right now I need registration form, so it is directly going to build and deploy. Okay, so the customer can easily see my project is working. Okay, so now today they have developed the sign up form or login form. Okay, so continuously they, मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, बट क्लाइंट को हमेशा वो मिल रहा है. ठीक है, दिख रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं. ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज भी हो रही है और उनको एक टाइम पीरियड में वो प्रोडक्ट आउटपुट में मिल भी रहा है, तो कस्टमर गेट सेटिस्फाइड, क्योंकि उसको नो लॉन्गर टू वेट फॉर द अंटिल गेट द टेस्टिंग मीन्स मेंटेनेंस के टाइम पे उतना जब तक मिलेगा तब उसको सेटिस्फाई होगा, ऐसा नहीं है, वो चेक करते रहेगा. ठीक है, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस अजाइल मॉडल के प्रिंसिपल देखते हैं हम. So agile model 90% IT कंपनी में यूज करते हैं. Okay, so the agile model project is divided into the various sprint. Okay, now take these words are very important. Sprint. Okay, in the interview they will ask what is sprint. Okay, so in the agile model the project is divided into the part. Okay, that part is known as the sprint. Okay, प्रोजेक्ट किस में डिवाइड होगा? पार्ट में. ठीक है, तो अब मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट बनाना है और इसको ड्यूरेशन समथिंग एस्टिमेट निकाला है कि 2 to 3 ईयर है, और इसमें जो मॉड्यूल्स है, एक मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स करेंगे, साइन अप, रजिस्ट्रेशन, ओके, जो भी है, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे. तो दिस इज व्हाट, 1 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल्स, इसको हमने क्या किया है, डिवाइड किया पार्ट में. ठीक है, हमने डिसाइड किया है कि ये जो मॉड्यूल है हम इसको डेवलप करके देंगे एक वन ऑफ द टाइम में, इसको भी डेवलप करके देंगे वन ऑफ द टाइम में. ओके, सो दिस पार्ट इज नोन एज स्प्रिंट. ठीक है, उसको बोलेंगे हम स्प्रिंट. सो इच स्प्रिंट contains the highest priority requirement. Okay, in agile process, then for the requirement we can say the user story. Okay, user story, requirement को ही क्या बोलते हैं? यूजर स्टोरी. दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं अजाइल मॉडल और एक बार एक्सप्लेन करना, और जीरा के पहले. ओके, जीरा के पहले मैं और सेरेमनी क्या रहती है, मीटिंग्स कैसे रहती है, सब मैं बताऊंगा, लेकिन वो जीरा के पहले अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद वो रिपीट करूंगा, डोंट वरी. सो एट टाइम पीरियड फॉर द स्प्रिंट टिपिकली 2 to 4 weeks. तो सबसे पहले अजाइल मॉडल में क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर है जो भी बनाना है उसको हम पार्ट में डिवाइड करते हैं, उस पार्ट को हम स्प्रिंट कहते हैं. ओके, दैट इज नोन एज अ स्प्रिंट. और ये जो स्प्रिंट है, जैसे हमने एक मॉड्यूल हमने डिवाइड किया है और इसको हमको डिलीवर करना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा, बराबर है. ये कंप्लीट हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें हमने मॉड्यूल में डिवाइड करा है, इसको हम बोलेंगे स्प्रिंट 1. ओके, दिस इज व्हाट स्प्रिंट 2. ओके, और दिस इज व्हाट स्प्रिंट 3.
ओके, सो ये पार्ट है, तो इसको बनाने के लिए स्प्रिंट 1 के लिए हमको कुछ टाइम लगेगा। ओके, सो द स्प्रिंट इज नथिंग बट अ टाइम पीरियड। ओके, एक स्प्रिंट मतलब एक साइकिल है, ठीक है, एक टाइम पीरियड है, उसमें हम उस साइकिल में वो जो है डिलीवर करेंगे, वो मॉड्यूल हम डिलीवर करेंगे। ओके, हम उसको बोलेंगे स्प्रिंट, स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंटिंग। सो एट द आउटपुट ऑफ द वन स्प्रिंट वी विल गेट द वन बिल्ड, ओके, वन मॉड्यूल। सो each sprint contains the highest priority requirement, highest priority requirement रहेगी। और जनरली द टाइम पीरियड फॉर द स्प्रिंट टिपिकली 2 to 4 weeks, ठीक है, 2 to 4 weeks। इंटरव्यू में नहीं बोल रहे हैं कि 2 to 4 week मेरा था, एक तो 2 बोलो नहीं तो 4 बोलो, ठीक है, 2 to 4 weeks बोलेंगे तो फंस जाएंगे। सो हाँ, व्हाट टू से, ओके, सो माय स्प्रिंट टाइमिंग वाज 2 week, दैट्स इट। ओके, 2 sprint इन अ मंथ, ठीक है, 2 sprint इन अ मंथ मतलब 2 week। ओके, यू कैन से द 2 week। तो आपको पूछ सकते हैं कि आपका स्प्रिंट साइकिल का टाइम क्या था। सो सिंपली से 2 weeks। ओके, 2 weeks मतलब हम 14 डेज में एक स्प्रिंट कंप्लीट करते थे, ठीक है। 14 डेज में हम रिक्वायरमेंट आ गई, डेवलपर ने डेवलप किया, टेस्टर ने टेस्ट किया, और 14 को मतलब 14 डेज के बाद उसको रिलीज कर दिया, वन स्प्रिंट। ओके, देन अगेन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द अनदर स्प्रिंट, ठीक है। तो 2 sprint इन अ मंथ, 2 sprint मतलब 4 weeks हो गए, है ना। 2 sprint, एक महीने में हमारे 2 sprint रहते हैं। ओके, 2 weeks ऑफ टाइम, ठीक है। तो टाइम पीरियड फॉर द स्प्रिंट वी कैन से 2 week, ठीक है, 2 week, 2 week का था मतलब एक मंथ में 2, ठीक है, 2 sprint ऐसे बोलना है, ठीक है। इन अजाइल मॉडल डेली स्क्रम मीटिंग इज अवेलेबल विद द टीम। तो अजाइल मॉडल में हमको डेली स्क्रम मीटिंग रहती है, इसको बोलते हैं स्क्रम मीटिंग। ओके, स्क्रम स्प्रिंट, ठीक है, स्क्रम मतलब डेली स्क्रम मीटिंग। सो व्हाट वी डिड yesterday, what you are going to do today, and what we are going to do on tomorrow। ओके, सो कल आपने क्या किया और आज का क्या करने वाले हो और कल क्या करेंगे, ठीक है। व्हाट यू डिड yesterday, what we are going to do today, and what we are going to do on tomorrow, ठीक है, ऐसा। कल क्या किया, आज क्या करने वाले हैं, और कल क्या करेंगे, ठीक है। सो डेली स्क्रम मीटिंग मीन्स स्टेटस ऑफ योर प्रोजेक्ट। ओके, डेली स्क्रम मीटिंग रहेंगी 10 to 15 मिनट्स की, डेली स्क्रम मीटिंग टू डिस्कस विद द टीम दैट इज प्रोजेक्ट। ओके, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। सो ये हमेशा ऐसे याद रखने का, वी आर फॉलोइंग द अजाइल मेथोडोलॉजी विद द स्क्रम फ्रेमवर्क, एंड इन दैट वी हैव द डेली स्क्रम मीटिंग ऑफ द 10 minutes। ओके, 10 minutes नहीं बोलना, डेली स्क्रम मीटिंग। इन द स्क्रम मीटिंग we are going to discuss what we did yesterday, what we are going to do today, and what we are going to do on the tomorrow। ओके, कल क्या करने वाले हैं। ओके, दैट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द डेली स्क्रम मीटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जब हम अजाइल और मैं एक्सप्लेन करूँगा उस टाइम पे भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी, ठीक है। द स्टेटस एंड पोटेंशियल इश्यूज ईच स्प्रिंट इज रिलेट टू द कस्टमर। सो जैसे हमारा स्प्रिंट कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो भी इश्यूज है, स्टेटस है, जो भी है, हम रिपोर्ट करते हैं या फिर वो डिलीवर करते हैं कस्टमर को। हर स्प्रिंट कंप्लीट हो गई है, हर स्प्रिंट के बाद हम डिलीवर करेंगे, बिल्ड मिलेगा उनको। Okay, now we can see here the one diagram। So 30 days sprint, okay, daily work, 30 days of sprint, so we can say 2 week of the sprint। Okay, then what is the sprint backlog, what is the sprint task, okay, working system and product backlog। Okay, then based on the high priority, so the product backlogs का meaning होता है, okay, this is known as user story। Okay, collection of the user story। यूजर स्टोरी का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। ओके, प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब हो गया collections of requirement। Okay, this is what collections of requirement, but these words are not used in the agile process, so you can simply say the backlog। ठीक है, प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब होता है लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट। प्रोडक्ट बैकलॉग मीन्स ग्रुप ऑफ यूजर स्टोरी।
collections of user story. User story means each user story is requirement, is nothing but the requirement. So product backlog का मीनिंग होता है कलेक्शंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है. प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब रिक्वायरमेंट. उसमें से हम क्या करेंगे, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो हम पिकअप करेंगे. ठीक है, हम अभी डिसाइड करेंगे व्हाट टू बी डिलीवर इन द नेक्स्ट स्प्रिंट. ओके, व्हाट यू आर गोइंग टू डिलीवर इन द नेक्स्ट स्प्रिंट. हम नेक्स्ट स्प्रिंट में क्या है डिलीवर करने वाले हैं. ओके, देन पिकअप दैट यूजर स्टोरी और यू कैन से द प्रोडक्ट बैकलॉग. ठीक है, उसको रिक्वायरमेंट हम ले रहे, उस यूजर स्टोरी को हम ले रहे. ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू डिलीवर इन द नेक्स्ट स्प्रिंट. देन द स्प्रिंट बैकलॉग. ओके, स्प्रिंट बैकलॉग इज द सबसेट ऑफ प्रोडक्ट बैकलॉग. ठीक है, स्प्रिंट बैकलॉग इज अ सबसेट ऑफ प्रोडक्ट बैकलॉग. ठीक है, उसमें से हमने रिक्वायर किया है. और स्प्रिंट बैकलॉग मतलब हमने कलेक्शन अभी प्रोडक्ट बैकलॉग से 4-5 ले लिए हैं. उसमें से हम किस पे वर्क करेंगे, डेट इज स्प्रिंट बैकलॉग. जिस पे वर्क करेंगे दिस इज स्प्रिंट बैकलॉग. उस स्प्रिंट के लिए वो बैकलॉग रहेगा. बैकलॉग ओके मतलब वर्क रिक्वायरमेंट जिस पे हम वर्क करेंगे. ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्प्रिंट बैकलॉग मतलब जो आपने स्टोरी पकड़ ली है. ठीक है, कमिटेड स्टोरी यू कैन से, जिस पे आप वर्क करोगे. कमिटेड स्टोरी. ओके, प्रोडक्ट बैकलॉग मीन्स कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरी. यूजर स्टोरी मतलब रिक्वायरमेंट होती है. Okay, just we are going to take this requirement, all this requirement whatever you have to take up. Okay, so priority base. So हमने आ गए यहाँ पे, हमको पता है कि हमारे पास एक स्प्रिंट है. नेक्स्ट स्प्रिंट में हम एक स्प्रिंट है 14 दिनों का मतलब 2 स्प्रिंट. देन ये स्प्रिंट में हम ये यूजर स्टोरी पे काम करने वाले हैं इस स्प्रिंट बैकलॉग पे. तो कमिटेड वर्क, डेवलपर और टेस्टर के वर्क करेंगे कि डेवलपर ने और टेस्टर में टीम ने ये ले लिया है स्प्रिंट बैकलॉग पे. हमको सिर्फ लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करना है. ओके, फंक्शनलिटी के साथ डिज़ाइन करना है लॉगिन फॉर्म समथिंग एक मॉड्यूल. सो दिस इज व्हाट स्प्रिंट बैकलॉग. ओके, स्प्रिंट बैकलॉग और प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या डिफरेंस है कि प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट. ठीक है, और स्प्रिंट बैकलॉग मतलब कि स्प्रिंट वर्क आ गया तो समझ जाओ कि हमने जो पकड़ा है अभी उस पर वर्क करना है. एक यूजर स्टोरी पे वर्क करना है, कमिटेड वर्क. ओके, सो द लिस्ट ऑफ कमिटेड स्टोरी बाय द डेवलपर और टेस्टर फॉर द स्पेसिफाइड स्प्रिंट. जिस स्प्रिंट के लिए आपने वर्क करना है, ठीक है, उस यूजर स्टोरी पे, उसको बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग, जिस पे आप काम करेंगे हर स्प्रिंट के लिए. सो स्प्रिंट बैकलॉग इज द सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट बैकलॉग. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू वर्क. देन द स्प्रिंट टास्क विल बी असाइन बाय द स्क्रम मास्टर. ठीक है, स्क्रम मास्टर रहता है ये. स्क्रम मास्टर आपको टास्क असाइन करेंगे. ओके, सो द फॉर दिस अजाइल प्रोसेस दैट यूज द जीरा. ठीक है, जीरा के लिए मैं स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ, डोंट वरी. ओके, और स्क्रम टर्मिनोलॉजी आई विल एक्सप्लेन लेटर आल्सो. ठीक है, स्क्रम स्क्रम वर्क कैसे होता है, स्क्रम फ्रेमवर्क, ये मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा बिफोर द जीरा. ठीक है, मैं सिर्फ अभी अजाइल प्रोसेस बता रहा हूँ आपको. प्रोडक्ट बैकलॉग रहता है, उसको यूजर स्टोरी कहते हैं, कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरी. उसमें से हाई प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट हम लेते हैं. उसमें स्प्रिंट बैकलॉग का मतलब होता है कि जिस पे यूजर स्टोरी पे आपको जिस रिक्वायरमेंट पे आपको काम करना है स्प्रिंट के लिए, क्योंकि स्प्रिंट बैकलॉग मीन्स द कमिटेड स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू डिलीवर इन द नेक्स्ट स्प्रिंट. ओके, द स्प्रिंट इज द पीरियड ऑफ टाइम. सो वी आर गोइंग टू डिसाइड what to be deliver, okay, in the next week of the time, that is what sprint. Then next is what, so what is going to be done in the daily scrum meeting. Okay, we are daily share the and identify the potential issues. Okay, sprint review demo system to take the holders and sorry, to stakeholder. Okay, sorry, share status and identify the potential issue. Okay, the sprint review demo system to stakeholders and gain the funding for the next sprint. Okay, then sprint
retrospective. Okay, so learn from your experience. That is what sprint retrospective, what went well. ओके, द स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव एक ही मीटिंग रहती है एक स्प्रिंट में. ओके, ये भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. सो प्लानिंग सेशन टू सिलेक्ट द रिक्वायरमेंट फॉर द करंट स्प्रिंट एंड टू आइडेंटिफाई द वर्क टास्क. सो डेली स्क्रम मीटिंग में हम डिस्कस करते हैं कि क्या कल क्या किया, आज क्या करेंगे और कल क्या करेंगे. उसमें कुछ हमको डेली स्क्रम मीटिंग में कुछ इशू आइडेंटिफाई हुए क्या, कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, ये चेक करना. और यहाँ पे जो स्टेक्स होल्डर्स है, ओके, सो द स्प्रिंट रिव्यू हम चेक करेंगे. स्प्रिंट रिव्यू मतलब में जो भी हम स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं उसी में उसके बाद हम स्प्रिंट रिव्यू करते हैं. ओके, स्प्रिंट प्लानिंग मतलब होगा कि व्हाट टू बी डिलीवर इन द नेक्स्ट स्प्रिंट. ओके, सो वी आर गोइंग टू डू दैट, व्हाट टू बी डिफाइन, व्हाट टू बी डिलीवर इन द नेक्स्ट स्प्रिंट. ओके, स्प्रिंट प्लानिंग में हम मीटिंग कंडक्ट करते हैं विद द टीम टू डिफाइन व्हाट कैन बी डिलीवर. ओके, हम क्या डिलीवर करेंगे. ओके, दैट इज व्हाट टू बी डिलीवर इन द नेक्स्ट स्प्रिंट एंड द ड्यूरेशन आल्सो. सो हाउ मेनी user story we are going to take and how many user story and developer we are going to work. Okay, so that is defined in the one day. Okay, means in the sprint planning meeting. ओके, तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में सब कुछ डिसाइड करते हैं. अब स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट, यूजर्स. स्टेक होल्डर मतलब होता है यूजर्स, गवर्नमेंट, ओके, एडमिन, कंपनी, ओके, एम्प्लॉयज. दिस आर व्हाट स्टेक होल्डर. ओके, so one presentation I am going to show you for this agile. Okay, you can check here. Okay, so here is what agile scrum framework. so ये scrum framework मैं और explain करने वाला हूँ आपको. ठीक है, मैंने आपको सिर्फ agile एक्सप्लेन किया है, agile मॉडल. और agile मॉडल में scrum framework जो है वो फॉलो करते हैं. ठीक है, agile is the SDLC model. Okay, agile is nothing but the principles and scrum is follows the agile principle. ठीक है, ये हमेशा याद रखना है. agile SDLC मॉडल है, scrum क्या एक फ्रेमवर्क है. so which follows the agile principle. Scrum is follows the agile principle. So actual working of the agile process. Okay, you can see here the actual working of the agile process. So Scrum is a framework which is based on the agile principle. Okay, which follows the agile principle, a framework that handles the simple and complicated and complex software development. Okay, so that is very useful because continuously requirement get changed and we are ready to do that one. So the scrum is based on the continuous improvement in the product and process. So every IT company, max IT company that follows the agile scrum methodology to improve their quality of the product and to improve the requirement, to improve the process. Okay, so that is continuous process is going on. Then the scrum deliver the software frequently and it showcase the hidden problems in the system development. Okay, so scrum deliver करता है सॉफ्टवेयर फ्रिक्वेंटली. ओके, विद दिस जितने भी स्प्रिंट की टाइमिंग होंगी, जैसे 2 वीक इन अ स्प्रिंट. ओके, 2 वीक में 2 वीक, वन स्प्रिंट इज अ 2 वीक. सो इन वन में 2 स्प्रिंट हो गए. एक महीने में 2 स्प्रिंट. हर स्प्रिंट में आउटपुट मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है. ओके, सो दैट इज व्हाट फ्रिक्वेंटली दैट गेटिंग डेवलपमेंट. सो इन स्क्रम प्रोजेक्ट मूव फॉरवर्ड विद द सीरीज ऑफ इटरेशन दैट इज कॉल्ड द स्प्रिंट. ओके, दैट इज कॉल्ड द स्प्रिंट. सो ये जो एक साइकिल कंप्लीट होती है, ओके, इस साइकिल को हम स्प्रिंट बोलते हैं. ठीक है, सो बिकॉज प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू द पार्ट एंड दिस पार्ट इज नोन एज द स्प्रिंट. इन द ईच स्प्रिंट the requirement is there, the developer is developed and tester will be test and then it is going to deploy, sorry, release. Okay, the release. Okay, release getting in the every sprint, output will be getting to the customer directly. Okay, so that is what iteration. So each sprint with having the high level requirement, so it will be the typical 2 to 4 week of the time. The sprint is nothing but the period of the time to complete the user story which is decided by the product owner and the team, usually in the 2 to 4 weeks of the time. Okay, so ये कौन डिसाइड करता है यूजर स्टोरी? प्रोडक्ट ओनर. ठीक है, प्रोडक्ट ओनर. So who is the product owner, who is the scrum master and what is the team? Okay, we will discuss, don't worry.
So it is based on what? Inspect and adaptive cycle, producing the product incrementally and iteratively. So agile is the incrementally and iterative based SDLCA. Okay, incremental and iterative. It is the incremental model and iterative base. Okay, that's reduce the risk and enhance visibility. So it all is covered. So waterfall, incremental, spiral. Okay, and spiral is the combination of also prototype, right? So this is all incremental and iterative. That is very important. Okay, so agile is a incremental and iterative model. Okay, with reducing the risk because you are testing each and every time in the sprint. Okay, that is very important. So this is the Scrum. Okay, this is what Agile Scrum. This is the Scrum framework, how it is work. Okay, this is the mostly asked questions. Okay, interview. What is going to be happen in this Agile Scrum process? Agile क्या है? SDLC मॉडल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, एक मॉडल है. स्क्रम क्या है? इट्स अ फ्रेमवर्क है विच फॉलोज द अजाइल प्रिंसिपल. ठीक है, अजाइल के जो प्रिंसिपल्स है वो फॉलो करते हैं स्क्रम. ठीक है, अजाइल बोलता है कि हम प्रोजेक्ट को डिवाइड करेंगे, उसको बोलेंगे हम स्प्रिंट, और ये स्प्रिंट मतलब होता है टाइम पीरियड जिसमें हमको डिलीवर करेंगे. और स्टैंडर्ड क्या रहता है टाइम उसका 2 to 4 वीक्स. ओके, 2 वीक्स नहीं तो 4 वीक्स. ओके, एक तो 2 वीक्स रखो या तो 4 वीक्स रखो, सिंपली यू कैन से द 2 वीक्स ऑफ द टाइम. ठीक है, ऐसे बोलना है. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग है द टीम, दैट इज व्हाट स्क्रम मास्टर. ठीक है, स्क्रम मास्टर, देन प्रोडक्ट ओनर. ओके, एंड टीम. ठीक है, 3 लोग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. कौन से? अजाइल में. ठीक है, एक है प्रोडक्ट ओनर, दूसरा है टीम, और तीसरा है स्क्रम मास्टर. सो अजाइल स्क्रम फ्रेमवर्क कैसे फॉलो करते हैं, कैसे वर्क करते हैं? ठीक है, सो प्रोडक्ट ओनर इज डेवलप द यूजर स्टोरी. ओके, so product owner take the input from executive teams. Okay, that is stakeholders, customer and users. Okay, so on the basics of that, the product owner define the requirements. प्रोडक्ट ओनर कहाँ से रिक्वायरमेंट लेता है? फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स, इनपुट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव टीम, स्टेक होल्डर्स. ओके, कस्टमर्स एंड यूजर. स्टेक होल्डर मतलब गवर्नमेंट हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है स्टेक होल्डर्स. ओके, एनी यूजर, everything. Okay, customer, government, employees, these are what stakeholders. Customers. Okay, then take the users. ठीक है, वहां से क्या करना है? रिक्वायरमेंट लेना, इनपुट्स लेना. देन प्रोडक्ट ओनर. ओके, प्रोडक्ट ओनर विल राइट all this user story, that is known as collections of user story is known as product backlog. ओके, रिक्वायरमेंट नहीं बोलते हैं अजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजी में, क्या बोलते हैं? यूजर स्टोरी. ठीक है, क्या बोलते हैं? यूजर स्टोरी. ओके, रिक्वायरमेंट नहीं बोलते हैं, यूजर स्टोरी. ओके, सो द प्रोडक्ट बैकलॉग मीन्स कलेक्शंस ऑफ यूजर स्टोरी. ठीक है, व्हाट वी नीड टू परफॉर्म. ठीक है, so it's take the all requirement, product owner is responsible for writing the user story or collections of the user story, that is known as product backlog. Okay, that is contain the list of user story. ठीक है, who will write the user story? That is most important question, product owner. ठीक है, कंफ्यूज करेंगे कभी आपने यूजर स्टोरी लिखी क्या, ऐसे बोलेंगे नहीं बोलना. ठीक है, उसका रोल, किसका रोल था ये? प्रोडक्ट ओनर का. ओके, सो यहाँ पे यूजर स्टोरी लिखा, हर यूजर स्टोरी मीन्स रिक्वायरमेंट. नाउ द टीम मीन्स व्हाट? डेवलपर एंड टेस्टर. ओके, टीम इज व्हाट? डेवलपर एंड टेस्टर. This is team. So team select the starting at the top much as it can commit to deliver by the end of the sprint. ठीक है, तो हम जो टीम है वो पिकअप करेंगे वन ऑफ द यूजर स्टोरी जो हमको इस स्प्रिंट में डिलीवर करना है, एंड ऑफ द स्प्रिंट, जैसे उस लास्ट डे में हम डिलीवर करेंगे वो. सो दैट इज व्हाट? स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग.
Okay, what we are going to do in the sprint planning meeting, we are going to define, okay, the team is going to define what can be delivered into the sprint. ठीक है, हम क्या डिलीवर करेंगे एंड आल्सो द व्हाट विल बी द ड्यूरेशन. ठीक है, तो ये 2 स्प्रिंट लगेंगे या 1 स्प्रिंट लगेगा, उसको उसके ऊपर डिसाइड करेंगे. ओके, सो टीम विल सिलेक्ट द स्टार्टिंग at the top as much as it can commit to deliver by the end of the sprint. Okay, that is what we are going to discuss in the sprint planning meeting. The sprint planning is a ceremony. Okay, so in the agile they will ask you the question, what are the ceremonies in the agile. Okay, what are the ceremonies in the agile? So what are the ceremonies? Sprint planning, daily scrum and sprint review. These are what ceremonies. Okay, what are the artifact and what are the role? ओके, ये भी पूछेंगे तो मैं इसी को और रिपीट करने वाला हूँ. ठीक है, बिफोर द जीरा और हमारे टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट बाकी है, वो कंप्लीट होने के बाद मैं और इसको एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, और उसमें लिख के भी दूंगा, दो एक एक लाइन के डेफिनेशंस भी आपको दे दूंगा आपको पढ़ने के लिए. ओके, वैसे आपको बोलना है. नाउ स्प्रिंट प्लानिंग मतलब होता है कि हमको कौन सा यूजर स्टोरी पिकअप करना है, उस पर वर्क करना है, डेवलपर डिजाइन करेंगे, टेस्टर टेस्ट करेंगे. एंड नाउ द स्प्रिंट बैकलॉग. ओके, सो हम यहाँ पे डिसाइड किया कि जितने भी स्प्रिंट बैकलॉग है, ओके, स्प्रिंट मीटिंग में डिसाइड किया हमने, इसमें से कुछ लिस्ट का यूजर स्टोरी हमने पकड़े हैं और उसमें डिसाइड किया कि इसको इतना टाइम, इसको 2 स्प्रिंट लगेगा, इसको 3 स्प्रिंट लगेंगे, इसको 4 स्प्रिंट लगेंगे. ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको 2 महीने जाएंगे तो 8 स्प्रिंट लगेंगे. ठीक है, उसके हिसाब से हमने डिसाइड किया. देन इन द स्प्रिंट बैकलॉग, okay, so in the sprint backlog then we are going to take here what committed. Okay, committed, हम जिस यूजर स्टोरी पे हमको काम करना है, दैट इज कमिटेड इन द स्प्रिंट बैकलॉग. ओके, टास्क ब्रेकआउट. ठीक है, पर्टिकुलर यूजर स्टोरी पे अभी हम पे काम करना है, पर्टिकुलर यूजर स्टोरी पे, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में. सो द स्प्रिंट बैकलॉग इज द सबसेट ऑफ प्रोडक्ट बैकलॉग. Product backlog contains the list of user story and sprint backlog contains the committed list of committed user story. We can say the committed, जिस पर काम करना है, committed user story. Okay, sprint backlog contains the committed user story. ऐसे याद रखने का. Now the sprint gets started. यहाँ पे हो गई अभी sprint start. Okay, so we have the 2 week of the time. ठीक है, then sprint is get started. Okay, and now the 2 week is completed. Okay, the sprint end date and team deliverable do not change. Okay, and now the finish the work. 2 week of time है हमारा. Okay, ये हमने दे दिया. So during the 2 week of time, okay, what is going to be happen? See here, during the 2 week of time, suppose our sprint meeting after 2 week. So during the 2 week we have the every 24 hours daily scrum meeting. ठीक है, जैसे हमारी स्प्रिंट चालू हो गई है, 2 वीक की स्प्रिंट है, और इस स्प्रिंट में जैसे वर्क करना चालू हो गया, तो वही स्प्रिंट में हमको क्या रहता है, डेली डेली मीटिंग रहती है हमारी. वी कैन से दैट इज व्हाट डेली स्क्रम मीटिंग. ओके, डेली स्क्रम मीटिंग. सो हु विल बी इन्वॉल्व देयर? प्रोडक्ट ओनर. ओके, ठीक है, ये देखो ब्लू है, ये टीम है यहाँ पे, ये टीम और स्क्रम मास्टर. ठीक है, रेड कलर, ब्लू कलर, द टीम. ओके, सो ऑल आर इज इन्वॉल्व इन द डेली स्क्रम मीटिंग. ठीक है, अब डेली स्क्रम मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, और कुछ इशू आए क्या वो डिस्कस करेंगे. ओके, समवन इज फेसिंग द इशू. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. ओके, सो एवरी 24 hours we have the daily scrum meeting, and now everything is okay and the scrum master will check the status of the task. स्क्रम मास्टर इज असाइन द टास्क. ठीक है, सबको जो टास्क असाइन करता है कौन करता है? स्क्रम मास्टर. डेवलपर को, टेस्टर को, जो भी टास्क देता है वो स्क्रम मास्टर रहता है. स्क्रम मास्टर भी एक जॉब है. प्रोडक्ट ओनर इज आल्सो वन जॉब. ठीक है, उसका भी सर्टिफिकेशन होता है. ठीक है, तो स्क्रम मास्टर भी एक सर्टिफिकेशन है. ठीक है, उनको सिर्फ टीम को हैंडल करना है और चेक करना है कि पूरे अजाइल प्रिंसिपल फॉलो कर रहे कि नहीं सब लोग. ठीक है, अजाइल प्रिंसिपल फॉलो कर रहे कि नहीं. और स्क्रम मास्टर का काम रहता है कि असाइन द टास्क एंड ही कैन रिस्पॉन्सिबल टू प्रेजेंट टू द प्रोडक्ट ओनर. ओके,
और जो भी है वो कुछ चार्ट में वो चेक करेगा. सो दैट इज नोन एज व्हाट, बर्न डाउन और बर्न अप चार्ट. ओके, बर्न डाउन और बर्न अप चार्ट. सो इन द बर्न डाउन और बर्न अप चार्ट में क्या होता है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखती है. ठीक है, इन प्रोग्रेस, द टास्क डन, कंप्लीटेड. ओके, एंड इन प्रोग्रेस, कितना प्रोग्रेस हुआ, मतलब कितना चालू है, कितना कंप्लीट हुआ, है ना, ये सब यहाँ पे एक चार्ट में दिखता है स्क्रम मास्टर को. ओके, so now daily scrum meeting is done, everything is okay, now our sprint is completed. Okay, then we have here what, finish the work. ठीक है, यहाँ पे we are going to finish the work. Okay, now that is delivered. Okay, and during this deliver, so we have the again two meetings here, that is what, sprint review and sprint retrospective. Okay, we have the two meetings here. Which one is that? Sprint review and sprint retrospective. Okay, the sprint retrospective meeting is very important. ओके, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव एक स्प्रिंट में एक ही बार होती है. ठीक है, एक साइकिल में सिर्फ एक ही बार होती है. दैट इज ओनली कंडक्ट ओनली वन फॉर द वन स्प्रिंट. एक स्प्रिंट में एक ही बार. ठीक है, सो इन द रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट वेंट वेल. ओके, व्हाट वेंट वेल, और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. ओके, ठीक है, सो क्या करने से हमको अच्छा हो जाएगा सब कुछ, है ना. सो व्हाट वेंट वेल. ठीक है, इन द स्प्रिंट रिव्यू, सो जो हम इसमें जस्ट रिव्यू करते हैं. ओके, जो भी हम डिलीवर करने वाले हैं और डिलीवर किया है. ओके, वी आर जस्ट रिव्यू दैट वन. ओके, सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस इन द अजाइल स्क्रम फ्रेमवर्क. ओके, इसमें से कुछ क्या नहीं समझ में आ गया, थोड़ा बताओ. एक बार थोड़ा रिपीट कर दो ना स्टार्टिंग से. ओके, सो अजाइल थोड़ा इज द, हाँ ठीक है, अजाइल इज द एसडीएलसी. ठीक है, एसडीएलसी मॉडल है. और स्क्रम क्या है, इट्स अ फ्रेमवर्क है विच फॉलोज द अजाइल प्रिंसिपल. हम्म, ठीक है, अजाइल मॉडल का मतलब होता है कि आपने क्या, प्रोजेक्ट को डिवाइड करो पार्ट में, और उसको बिल्ड करो, डिप्लॉय करो और रिलीज कर दो. हम्म, ठीक है, बिल्ड डिप्लॉय टेस्ट एंड रिलीज. ठीक है, और इसको हम स्प्रिंट बोलेंगे, दैट इज नथिंग बट द साइकिल. हम्म, तो उसी को हम अजाइल मॉडल को बोलेंगे, इट्स अ इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव. ओके, ओके. इट इज द इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव मॉडल, ऐसे आप बोल सकते हो. इंक्रीमेंटल भी है, इटरेटिव भी है, क्योंकि इटरेशन हम्म, मतलब होते हैं स्प्रिंट. स्प्रिंट मतलब हम्म. होता है एक टाइम ड्यूरेशन वेयर. मतलब साइकिल, हाँ, साइकिल हाँ, स्प्रिंट मतलब मतलब टाइम साइकिल. साइकिल्स. स्प्रिंट मतलब पीरियड ऑफ द टाइम टू कंप्लीट द यूजर स्टोरी. Okay, which is decided by the product owner and the team, usually that will be take the 2 to 4 weeks of time. So sprint एक टाइमिंग है कि स्प्रिंट का टाइमिंग होता है 2 से लेके 4 वीक का. तो हम ऐसे ये होता है 2 से लेके 4 वीक स्टैंडर्ड. तो कोई कंपनी 2 वीक फॉलो करती है, कोई 3, कोई 4, कुछ भी फॉलो करेंगे. हमको माइंड में ये रखना है कि हमारी कंपनी 2 वीक का स्प्रिंट फॉलो करती है. ओके. ठीक है, ये हमारे माइंड में रखना, वी हैव द 2 वीक्स ऑफ द स्प्रिंट टाइम. तो एक मंथ में हमारे कितने स्प्रिंट होंगे, 2 स्प्रिंट. ठीक है, हाँ. हर स्प्रिंट में हमको क्या मिलने वाला है, बिल्ड मिलने वाला है. ठीक है, हम्म, हर ओके. हर स्प्रिंट में हमको आउटपुट में क्या मिलेंगे, बिल्ड मिलेंगे ना, पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर मिलेगा. ठीक है, हम्म. पीसेस में सॉफ्टवेयर के जो पीसेस में मिलेंगे हमको. तो इसीलिए कस्टमर हैप्पी हो जाएगा. और ये जो स्प्रिंट है, स्प्रिंट मतलब टाइमिंग जिसमें हम वर्क कंप्लीट करने वाले हैं, उस वर्क को बोलते हैं यूजर स्टोरी रिक्वायरमेंट. दैट इज नोन एज यूजर स्टोरी. और ये जो साइकिल है, ये जो स्प्रिंट है, ये कंटिन्यूस चलती रहेंगी. ठीक है क्या नहीं. तो इसीलिए ये इटरेटिव है और इंक्रीमेंटल भी है. ओके. तो जैसे रिक्वायरमेंट आते रहेंगे वैसे वर्क चलते रहेगा. अब इसमें स्क्रम में कैसे फॉलो करेंगे, ये हो गया अजाइल प्रिंसिपल. अजाइल बोलता है कि हम क्या करेंगे, एक टाइम ड्यूरेशन रख देंगे, उसको हम स्प्रिंट कहेंगे. हम हर एक टाइमिंग में रिक्वायरमेंट लेते जाएंगे और उसको देते जाएंगे, बना के देते जाएंगे, टेस्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, देते जाएंगे, और आएंगे और रिक्वायरमेंट करेंगे, देते जाएंगे.
ठीक है। तो यही प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज वन फ्रेमवर्क, दैट इज स्क्रम फ्रेमवर्क। ओके, सो वी फॉलो द स्क्रम। तो हम इसी एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट और टेस्टिंग करेंगे, इसी एनवायरनमेंट में, अजाइल में, ठीक है, स्क्रम में। तो वी कैन से यू आर द अजाइल टेस्टर। ओके। आप खुद को बोलेंगे कि आप अजाइल टेस्टर हो, क्योंकि वी नो द ऑल दिस प्रिंसिपल ऑफ द अजाइल। ठीक है, अजाइल में होता क्या है, प्रोडक्ट ओनर रहता है, टीम कौन सी रहती है अजाइल में, प्रोडक्ट ओनर, टीम एंड स्क्रम मास्टर, ये रोल्स है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ओनर क्या करता है कि इनपुट्स लेता है स्टेक होल्डर, कस्टमर, यूजर से। ठीक है, स्टेक होल्डर मतलब गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, है ना, एंड ते वो गेट स्टेक होल्डर जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं वगैरह, या फिर जो यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज स्टेक होल्डर। देन द प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, रिक्वायरमेंट लेता है और रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करता है। सो कलेक्शन ऑफ द रिक्वायरमेंट मीन्स कलेक्शन ऑफ द यूजर स्टोरी। ठीक है, अजाइल में रिक्वायरमेंट को यूजर स्टोरी कहते हैं। रिक्वायरमेंट मतलब होता है यूजर स्टोरी, और हमेशा अभी यूजर स्टोरी ही बोलने का, रिक्वायरमेंट नहीं बोलने का। ठीक है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द अजाइल प्रिंसिपल। और हर एक रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने के बाद वो लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट बन जाता है। ओके, इसी को बोल कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। ओके। तो इसको हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट बैकलॉग इज द लिस्ट ऑफ यूजर स्टोरी। ये कौन निकाल के देता है, प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर। ओके, एक प्रोडक्ट ओनर नाम का भी एक रोल होता है। ठीक है, वो निकाल के देता है सब कुछ। अब उसके बाद जो टीम है, टीम कंटेन्स डेवलपर एंड टेस्टर। जो भी लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट है, लिस्ट ऑफ यूजर स्टोरी है, उसमें से कुछ यूजर स्टोरी वो चेक करेंगे 10-15। तो ये हम डिसाइड करते हैं स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में। ठीक है, तो हम उसमें से यूजर स्टोरी निकालते हैं 10-15, हम चेक करते हैं कि इसको कितना टाइम, ये आइडेंटिफाई करते हैं हम स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में। तो इस यूजर स्टोरी को कितने स्प्रिंट जाएंगे, इस यूजर स्टोरी को कितना टाइम जाएगा, जा सकता है, ये आइडेंटिफाई करेंगे हम इस पे। ठीक है, और इसमें से हम जो भी है वो देन हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, अभी हमको इस यूजर स्टोरी पे काम करना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम स्प्रिंट बैकलॉग। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्प्रिंट बैकलॉग एंड प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग में लिस्ट ऑफ स्टोरीज में रहेगी, मतलब यूजर लिस्ट ऑफ स्टोरी, रिक्वायरमेंट्स। हाँ, यूजर यूजर स्टोरी, स्टोरी। लिस्ट ऑफ यूजर स्टोरी, दैट इज लिस्ट डिफाइंड। ऑफ। हाँ। और जो स्प्रिंट बैकलॉग है उसमें जो भी कमिटेड स्टोरीज रहेगी, मतलब एक्चुअली जिस पे वर्क वर्क करना करना है, है वो। करेक्ट। हाँ, तो स्प्रिंट बैकलॉग इज द सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट बैकलॉग। ठीक है, वो उसका सबसेट है वो, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट हम इस पे वर्क कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू कमिटेड वर्क ऑन दैट। ओके, सो नाउ वी आर कीप टेकन दैट यूजर स्टोरी एंड वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट नाउ। ओके, सो नाउ द स्प्रिंट इज गेट स्टार्टेड। ओके, सो स्प्रिंट हैविंग द 2 वीक ऑफ टाइम, 2 वीक में 14 डेज आ गए हैं। उस 14 डेज में डेली मीटिंग रहेंगी। ठीक है, और इसमें सारी टीम रहेंगे, प्रोडक्ट ओनर रहेगा, स्क्रम मास्टर रहेगा और टीम भी रहेंगी। टीम मतलब डेवलपर एंड टेस्टर, तो डिस्कस करेंगे डेली स्क्रम मीटिंग, कल क्या किया, आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, स्टेटस रिपोर्ट। और जो स्क्रम मास्टर का काम क्या रहता है, टास्क असाइन करना। ठीक है, वो टास्क असाइन करता जीरा में, और बर्न डाउन और बर्न अप चार्ट देखते रहता, कितने लोगों ने कितना, मतलब प्रोजेक्ट का यूजर स्टोरी का ये टास्क था, यूजर स्टोरी इस स्प्रिंट में कितना वर्क हुआ, और इसमें इन प्रोग्रेस कितना है, कितना टास्क कंप्लीट हो गया, कितना बाकी है, और कंप्लीट प्रोजेक्ट का पर स्प्रिंट, और कंप्लीट प्रोजेक्ट मतलब वो जितने भी स्प्रिंट होते जा रहे हैं उतना। ठीक है, और रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। ओके, समझ में आ गया। अभी अजाइल स्क्रम यही फॉलो होता है, यही फॉलो करते हैं, यही फॉलो बोलना है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आगे, रीड स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव एंड स्प्रिंट रिव्यू। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया वर्क। अगर द सेम प्रोसेस विल बी कंटिन्यू अंटिल गेट द सॉफ्टवेयर। ओके, पूरा जब तक रिक्वायरमेंट बंद नहीं होती तब तक चलते रहता है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म चलते रहता है, ये सबसे बेस्ट मॉडल है, अच्छा है सबके लिए। ठीक है, तो इस पे वर्क चलते रहता है। तो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्ट्रो एक ही मीटिंग होती है हर स्प्रिंट में, वहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या अच्छा हो सकता है। ओके, क्या करेंगे तो और अच्छा हो सकता है। ठीक है,
उस मॉड्यूल में, और रिव्यू करते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्प्रिंट रिव्यू, जो भी हमारी स्प्रिंट चल रही है उसको रिव्यू करना, ठीक है। तो ये हम आगे देखते हैं। तो स्क्रम रोल्स, ठीक है, स्क्रम रोल्स कितने यहाँ पे, 3। कौन सा है स्क्रम रोल्स, इंपॉर्टेंट रोल्स स्क्रम मीटिंग में, सॉरी स्क्रम फ्रेमवर्क में कौन से है, 3 है। एक है प्रोडक्ट ओनर, दूसरा है स्क्रम मास्टर एंड टीम। इसको आइडेंटिफाई करो, इसको दिमाग में डाल दो, सबसे इंपॉर्टेंट ये। अजाइल और स्क्रम पूरा माइंड में फिक्स कर लो, पूरा फिक्स, क्योंकि इसी प्रोसेस में हम वर्क करेंगे और यही प्रोसेस में बोलना है कि हम इसमें वर्क किया है, ठीक है, अजाइल में ही वर्क किया है हमने, अजाइल टेस्टिंग की है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ नहीं बोलना, हम सिर्फ अजाइल में वर्क कर रहे हैं बस। सो स्क्रम रोल लोग अजाइल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो अजाइल में कितने भी क्वेश्चन पूछे हमको परफेक्ट आंसर देना है। वो आपको चेक करेंगे अजाइल के ऊपर, हाँ, अजाइल के ऊपर स्क्रम के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको सिनेमनी क्या है, आर्टिफैक्ट क्या है। ये मैं लिख के दूंगा, जो मैं अभी बोल रहा हूँ नहीं है, ये पीपीटी में नहीं होगा शायद, तो मैं लिख के दूंगा बाद में जीरा के पहले, क्योंकि ये सब मैनेजमेंट के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर लगता है, टास्क असाइन करना, डिफेक्ट रिपोर्ट करना, है ना। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर लगता है, उसका नाम है जीरा। ओके। तो जो जीरा पढ़ाने के पहले मैं और इसको रिपीट करूंगा, जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे अजाइल के ऊपर, ठीक है। फिलहाल के लिए ये जो इतना बताया है वो फिक्स करके रखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर एंड टीम, दिस इज व्हाट रोल्स इन द स्क्रम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने रियल टाइम में पूरा, ठीक है। सो प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर एंड टीम, ये है 3 रोल्स रहते हैं, ठीक है। दिस इज स्क्रम रोल्स। and what are the responsibilities of the roles, okay, so roles are different and responsibilities are different, so sometimes they will ask you what is your role and what is your roles and responsibility। तो रोल मतलब होती है पोस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब व्हाट यू हैंडल, ठीक है। तो रोल्स मतलब एज अ क्यूए इंजीनियर, एज अ मैनुअल क्यूए या क्यूए फंक्शनल, ओके। सो ये हो गया आपके रोल, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, दिस इज द रोल। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स राइटिंग द टेस्ट केसेस, okay, writing the scenarios, executing the test cases, defect reporting, maintaining the defect report, okay, daily status report, weekly status report, ये हो गया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो प्रोडक्ट ओनर का टास्क क्या रहता है, प्रोडक्ट ओनर इज अ क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये भी एक कोर्स है पर प्रोडक्ट ओनर का, जिसका कम्युनिकेशन स्किल वगैरह अच्छा रहता है, ये भी वर्क करते हैं लोग इस पे भी, प्रोडक्ट ओनर पे। तो क्लाइंट के साथ डायरेक्टली वर्क करते रहता है वो, प्रोडक्ट ओनर का कोर्स आता है। सर्टिफाइड प्रोडक्ट ओनर, ओके, सर्टिफिकेशंस वगैरह रहते हैं इसमें, और स्क्रम मास्टर का भी आता है, प्रोफेशनल स्क्रम प्रोडक्ट ओनर। तो एक क्लाइंट के साथ वर्क करता है, मतलब मैंने एक लड़की देखी तो 5 पैसा ऐप है देखो, उसमें वो प्रोडक्ट ओनर थी, ठीक है। तो ये अच्छा है, लेकिन उसमें कम्युनिकेशन स्किल वगैरह एमबीए वाले ज़्यादा ये है, मतलब पूरा लिखना है उसमें, मतलब पूरा अच्छा है ये भी। देन ठीक है, तो प्रोडक्ट ओनर भी एक रोल रहता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इट्स अ वो क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव रहता है प्रोडक्ट ओनर, इसलिए इसको अपॉइंट करना पड़ता है प्रोडक्ट ओनर को, ठीक है। देन डिफाइन द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट ओनर है फीचर्स डिफाइन करेंगे, जो बोला है ना अभी, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट कहाँ से लेंगे, वो क्लाइंट से लेंगे और बाकी उसे लेंगे, ठीक है, मार्केट से। देन डिफाइन द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब क्लाइंट बोलेगा कि मुझे अभी यहाँ पे इस पेज पे ये फीचर्स दिख रहे हैं, अभी मुझे उधर के फीचर इधर चाहिए, वो उधर चाहिए, तो ये प्रोडक्ट ओनर सब कलेक्ट करेंगे और उसको यूजर स्टोरी में लिखेंगे सब कुछ। तो डिफाइन द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन वाला एफएम हो सकता है, ऑडियो रीडिंग बुक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बहुत है, वही बिजनेस चल रहा है, okay. So decide the release date and content, okay, it will decided release date and content also, priority features according to the market value, okay, वो मार्केट वैल्यू भी स्टडी करता है प्रोडक्ट ओनर कि उसके हिसाब से। अभी एक फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है, तो वो अमेजोन लाइन, क्या बोलते हैं, अमेजोन, हाँ अमेजोन
मार्केटिंग, ठीक है, तो ऑनलाइन परचेसिंग हो रहा है। उसके साथ क्या लॉन्च किया, AWS, अमेजोन, क्या है, अमेजोन क्लाउड, ओके, वेब सर्विसेज, और इसमें लॉन्च किया प्राइम वीडियोस, ठीक है। तो ये आपकी भी कुछ ऐसी वेबसाइट है, वर्क चल रहा है, तो हम भी कॉम्पिटिटर्स की तरह हम भी कुछ नए फीचर्स, ये उसने ये किया तो उसका अच्छा हम क्या सोच सकते हैं उसके उसके ऊपर, तो ये भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ओके, सो द प्रॉपर प्रायोरिटीज फीचर्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यूज ऑल्सो, कि जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है वो पहले वर्क करो उस पर, ठीक है। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी रहता है, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट का भरोसे वाला है, ये डुबाएंगा क्लाइंट को, वही ऊपर लेके जाएगा ठीक है, प्रोडक्ट और डेवलपर और टेस्टर का मतलब इसमें हाँ एमबीए वाले ही ज्यादा वर्क करते होंगे। हाँ हाँ, जाते हो गए हो, और वो भी ऐसे कॉलेजेस से नहीं, किसी को पता भी नहीं है प्रोडक्ट ओनर नाम की पोस्ट भी होती है, ये सब आईआईटी वाले और ये आईआईएम रहते हैं ठीक है, ये आईआईएम वाले बंदे रहते हैं, हाँ। तो कैसा रहता है कि डेवलपर और टेस्टर को हमको क्या लेन देन है, उसको बोलेंगे कि ये डेवलप करके दो, डेवलप करेंगे, हमारा काम है टेस्ट करके दो, हमसे उसको क्या लेन देन है। सो ये जो है सब कुछ चीज़ें प्रोडक्ट ओनर और क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, बिकॉज ही स्टडी द मार्केट वैल्यू, ठीक है। उसके हम्म हिसाब से वो चेक करेगा कि अभी हमको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, और अभी इसने इस फीचर्स में ये ऐड किए करना है, या फिर आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा एंजल ब्रोकिंग टाइप का इन्वेस्टमेंट में, तो उसमें एडिशनल फीचर्स भी देते हैं, जैसे पेटीएम मनी आया, पेटीएम मनी, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक एंजल ब्रोकिंग, वहाँ पे हम स्टॉक परचेस करते हैं, है ना, वैसे टाइप का। तो हर एडिशनल फीचर्स में आने चाहिए हर चीज़ें, क्योंकि हर अभी पहले गूगल पे आया, गूगल पे में उन्होंने बिलिंग सिस्टम चालू किया, हर लोकल से कनेक्ट किया, तो फिर अभी एचपी का गैस क्या, एलआईसी के ये क्या, मतलब हर चीज़ यहाँ पे टाई अप हो चुका है ऑनलाइन पेमेंट में, एपीआई लेके, है ना। तो वैसे हिसाब से ही हमको बनाने पड़ेंगे कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमको एडिशनल प्रोडक्ट में क्या पॉसिबिलिटीज ला सकते हैं, ये सब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट ओनर को, उसका वही काम है। ओके, एंड द प्रोडक्ट ओनर कैन बी एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द वर्क आइटम्स आल्सो, ठीक है, और डेवलपर अपने मन से कुछ भी नई चीज़ें ऐड नहीं कर सकता। वो बोलेंगे कि चलो इसको ये अच्छा दिख रहा है, हम इसको डालेंगे और अच्छा दिखेगा, तो ये पहले डिस्कस करना पड़ता है टीम में, ठीक है। सो व्हाट वेंट वेल, तो दिस इज व्हाट स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, इसमें हम डिसाइड करेंगे, और वो प्रोडक्ट ओनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा आपका जो कुछ एडिशनल थिंकिंग है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। डेवलपर टेस्टर से भी हम राय लेते हैं कि आपको कुछ लगता है कि इसमें, पूछते हैं ऐसे, तो आपको लगता है कि कुछ सजेशन देना है तो यू कैन गिव द सजेशन, नो प्रॉब्लम, ठीक है, दे आर वेलकम योर सजेशन, बट एट द एंड एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट फ्रॉम द दैट इज डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ओनर, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट ओनर। अब समझ में आ गया प्रोडक्ट ओनर क्या करता है कि रिक्वायरमेंट लेता है, यूजर स्टोरी उसको बोलते हैं, यूजर स्टोरी लिखता है वो, और कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरी प्रोडक्ट बैकलॉग कहते हैं उसको ले लेता है, ठीक है, और ये आइडेंटिफाई करके मतलब मार्केट कैसा चल रहा है उसके हिसाब से वो यूजर स्टोरी आपको बताता है, ठीक है। वैसे वर्क करना है हमको एज पर द मार्केट वैल्यू, और डिपेंडेंट है कि वो कैसे प्रॉफिट में ला सकते हैं क्लाइंट के बिजनेस को, ठीक है। देन स्क्रम मास्टर, सबसे अच्छा आदमी स्क्रम मास्टर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ टास्क असाइन करो, दैट्स इट, ओके। स्क्रम मास्टर इज द which follows the, or you can say he's drive the agile process, okay, that is what the main role is, what facilitating and driving the agile process, okay, सिर्फ ये agile process ड्राइव करता है, ठीक है, ये agile process को फॉलो, और वो चेक करता है कि सब लोग agile process फॉलो कर रहे हैं कि नहीं प्रॉपरली, मतलब जो टास्क दे रहे हैं वो पर्टिकुलर टाइम में हो रहे कि नहीं, ठीक है। तो कोच फॉर द स्क्रम टीम, टीम मतलब स्क्रम, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द स्क्रम फ्रेमवर्क, ओके, स्क्रम फ्रेमवर्क विच हैविंग द अजाइल प्रिंसिपल्स, अजाइल स्क्रम, ठीक है। सो enacting scrum values, okay, enacting what scrum values ensure the team's productivity, build a winning team, okay, apply the agile principle and make the system effective. So Scrum Master is drives the agile process, okay, it's responsible to check the agile process, okay, मतलब सब वर्क चल रहा है कि नहीं प्रॉपर, एंड इट्स बिल्ड अ विनिंग टीम आल्सो,
ओके, तो ऐसा कुछ बिल्ड नहीं करते, बट वी कैन से बिकॉज ये बॉस है फिलहाल के लिए, मतलब टास्क दे रहा है, तो वी कैन से इट्स अ बिल्ड अ विनिंग टीम। ओके, दैट इज कोच फॉर द टीम, वी कैन से इज द कोच। और स्क्रम मास्टर के लिए भी ये है, क्या बोलते, कोर्सेस लेते होगे, स्क्रम मास्टर रोल, अच्छा काम है। हम्म। स्क्रम मास्टर कोर्स, टास्क असाइन करो, क्लाइंट को, प्रोडक्ट ओनर को रिप्रेजेंट करो, सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर एससीएम कोर्स। और इसकी वैकेंसी भी रहती है स्क्रम मास्टर की हर जगह पे, प्रोडक्ट ओनर की भी वैकेंसी रहती है। ये सब नॉन टेक्निकल या फिर रहते हैं, जैसे बीसीए एमसीएस, मतलब जो एकदम अच्छे कॉलेज से पास आउट रहते हैं, कुछ हाई लेवल वाले, वैसे वो वर्क करते हैं। ठीक है, हम मास्ट स्क्रम मास्टर के बारे में देखते हैं। ओके, इसमें भी वही रहता है, एनी ग्रेजुएशन स्क्रम मास्टर। ठीक है, so we are find here project manager scrum master, okay, manager scrum master, 5 to 10 year experience, agile methodology, सब कुछ रहता है वो, उनको नॉलेज होना चाहिए उस प्रोसेस में। बहुत कुछ लिखा है यहाँ पे स्किल। ठीक है, और कुछ ग्रेजुएशन, यूजी पीजी, यहाँ पे बीटेक बोला है। कई कई जगह कुछ पूछते भी नहीं है स्क्रम मास्टर। ये देखो सीमेंस, सीमेंस में क्या बोलता है ये देखते हो। सीमेंस में बोलता है कि एनी ग्रेजुएशन एनी पीजी नो प्रॉब्लम। ओके, सो एटलीस्ट 1 year प्लस रिलेवेंट इन द स्क्रम मास्टर। ओके, सो लेकिन ये थोड़ा सर्टिफिकेशन रहा तो अच्छा रहता है स्क्रम मास्टर का। और जो अच्छे हाई कॉलेज से पास आउट होते हैं तो उनको कैसे कि डायरेक्टली हर पोजीशन में वो डाल देते हैं उनको। और जो कुछ ऐसे कॉलेज से लेते हैं तो फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके हिसाब से फिर डिसाइड करते हैं कि उनको कौन से टीम में डालना है, मतलब डेवलपमेंट में डालना है कि टेस्टिंग में डालना है, वो बाद में डिसाइड करते हैं। हम्म। तो अच्छे कॉलेजेस में कैसे कि जैसे कैंपस हो जाता है उसी टाइम पे चेक कर लेते हैं इनको कि अच्छे पहले से अच्छा रोल मिल जाता है उनको। फिर उसको इंटरनली प्रोसेस होते रहते हैं, जैसे 3 साल हो गया अगर आप कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो हम्म। उसके बाद आपको एक सीआरएम पे वर्क करने के लिए लगा देते हैं, जैसे सर्विस नाउ है या सेल्स फोर्स है। ठीक है, क्योंकि आपको पूरे ड्यूरिंग द एंटायर क्या बोलते हैं लाइफ हम कोडिंग नहीं करते हैं। डेवलपर पूरा 3 साल तक कोडिंग करता, फिर सीनियर डेवलपर बन जाता, फिर सीनियर में रिव्यू करता कोड को, और उसके बाद एक प्रोजेक्ट पे मतलब सीआरएम पे आ जाते, जैसे सेल्स फोर्स है, सर्विस नाउ, ऐसे बहुत सारे सीआरएम रहते हैं, वो उस पे आ जाते थे। ओके, सो जैसे वर्क बढ़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। ओके, बहुत वो आगे बढ़ेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बस मैनेज करना पड़ता है टीम को वगैरह। देन उसके बाद ठीक है, सो द स्क्रम मास्टर असाइनिंग द टास्क। ठीक है, देन द टीम, टीम यहाँ पे 5 to 9 मेंबर। इनएक्टिंग स्क्रम वैल्यू मीन्स, इनएक्टिंग मीन्स। जो अपने स्क्रम वैल्यू प्रोडक्ट की है, इन एक्टिंग कर दे उसको। जो हमारे स्क्रम रोल है ना, जो भी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं हमारे स्प्रिंट क्या बोलते हैं स्क्रम में, वही है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक मीनिंग अगर देखे इन एक्टिंग का, एक्टिवली वी वर्क दैट वन। So, so acting, you can say in acting, communications. You can say the communications also. Yeah, meetings. कम्युनिकेशन। Communications mean meeting with the teams. Okay, we are going to enact with the Scrum values. Discussing while discussing that one. Okay, communication मतलब discuss करते रहना, enact होते रहना to increase the values, Scrum values. Okay, so that is what a task responsible for assigning the task और टीम को कोच करना। ओके, और बिल्ड अ विनिंग टीम्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज व्हाट कि अप्लाई द अजाइल प्रिंसिपल एंड मेक द सिस्टम इफेक्टिव। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही बोलना है कि ये स्क्रम मास्टर ड्राइव करता है अजाइल प्रोसेस को। हम्म, हम्म। और सब प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। ठीक है, then the team that contains the 5 to 9 members team, okay, developer plus tester, so we can say our team member is 9। ठीक है, 9 बोलना।
developer plus tester. So self organizing, okay, then high performance team होनी चाहिए, build winning product, okay, work collaboratively and share the responsibility cross functional team. ठीक है, सो टीम में जो जिसका जो टास्क है वो वर्क कंप्लीट करेंगे, डेवलपर अपना वर्क करेगा, टेस्टर अपना वर्क करेगा, लेकिन सब कुछ इफेक्टिवली करेगा, ओके, हाईली परफॉर्मेंस। तो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ओके। टीम इज नथिंग बट अ डेवलपर एंड टेस्टर, दिस थ्री रोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द अजाइल स्क्रम, ठीक है। प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर एंड टीम। प्रोडक्ट ओनर से कलेक्शन लेना, स्क्रम मास्टर वर्क डिसाइड करेगा कितना हुआ क्या हो गया, बर्न डाउन चार्ट क्रिएट करता है वो, बर्न डाउन में और वो रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ओनर को, आपने इतना दिया था उसमें से इतना प्रोडक्ट चल रहा है और इतना बाकी है, और टीम के साथ डिस्कस करके और उसके क्या इशू आ गए हैं वो डिस्कस करना डेली स्क्रम मीटिंग में, ओके। देन स्प्रिंट में एक्टिविटीज़ क्या होती है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, स्क्रम में स्प्रिंट मतलब पीरियड ऑफ टाइम, ओके। सो द स्क्रम मतलब होता है कि हमारा फ्रेमवर्क, तो इस स्क्रम में एक्टिविटीज़ क्या होती है, दैट फॉलोज द 5 एक्टिविटीज़। एक होती है स्प्रिंट प्लानिंग, दूसरा होता है डेली स्क्रम, तीसरा होता है स्प्रिंट रिव्यू, चौथा है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोडक्ट बैकलॉग रिफाइनमेंट। तो ये मोस्टली आज क्वेश्चन है कि कभी आपको पूछेंगे स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव क्या है, प्रोडक्ट बैकलॉग और रिफाइनमेंट मतलब क्या होता है, ओके, रिफाइनमेंट। तो स्प्रिंट प्लानिंग मतलब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट टू बी डिलीवर, हमको क्या डिलीवर करना है पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, ओके। सो हाउ वी आर गोइंग टू, हाउ मेनी यूजर स्टोरी, बंचेस ऑफ द यूजर स्टोरी आर देयर, तो उसमें से डिसाइड करेंगे हम इस मीटिंग में कि कौन सा यूजर स्टोरी हम स्टार्ट करनी है, क्या करना है, किसको कितना टाइम लगेगा, ओके। सो दिस इज व्हाट स्क्रम एक्टिविटी एंड दे यूज द सम वर्ड सेरेमनी, ओके। सेरेमनीज, व्हाट आर द सेरेमनी एंड व्हाट आर द आर्टिफैक्ट। और एक बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ना डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है, अजाइल स्क्रम में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट बैकलॉग रहता है और क्या बोलते हैं, यूजर स्टोरी, प्रोडक्ट बैकलॉग, सिर्फ दो डॉक्यूमेंटेशन फॉलो होते हैं यहाँ पे बस, एक प्रोडक्ट बैकलॉग और दूसरा है स्प्रिंट बैकलॉग, बस, ओके। प्रोडक्ट बैकलॉग और स्प्रिंट बैकलॉग वही डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट, ठीक है। दीज आर द टू आर्टिफैक्ट, स्प्रिंट बैकलॉग एंड प्रोडक्ट बैकलॉग। और बाकी जो है आरटीएम वगैरह वो इम्पोर्टेंट उतना ये नहीं रहता है, क्योंकि हम वो कुछ देखते नहीं, डायरेक्ट यूजर स्टोरी देखते हैं, उसके ऊपर से यूजर स्टोरी में जैसा है वही उसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से हम टेस्ट करते हैं। तो स्प्रिंट एक्टिविटीज़ में वर्क कैसे होता है, सबसे पहले हम करते हैं स्प्रिंट प्लानिंग, ठीक है। सो स्प्रिंट प्लानिंग में हम क्या डिस्कस करते हैं कि देन वहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि क्या डिलीवर करेंगे नेक्स्ट स्प्रिंट में, व्हाट टू बी डिलीवर इन द नेक्स्ट स्प्रिंट, ओके, एंड व्हाट विल बी द ड्यूरेशन। तो हम उसमें ड्यूरेशन डिसाइन करेंगे, हम देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बैकलॉग्स है उसमें से यूजर स्टोरी लेते हैं, डिसाइड करते हैं कि कितने को कितना टाइम लगेगा, ओके। तो डेली स्क्रम मीटिंग में डिसाइड करते हैं हम कि प्रोग्रेस स्टेटस, ठीक है। स्प्रिंट रिव्यू में हम चेक करेंगे कि जो हम सब रिसोर्सेज बराबर है क्या, सब वर्क कर रहे हैं कि नहीं बराबर, और सब बराबर जाएगा कि नहीं, ठीक है। दैट इज़ व्हाट जस्ट रिव्यू। जो स्प्रिंट है, जो टाइमिंग है और जो हम डिलीवर करने वाले हैं प्रोडक्ट बैक, स्प्रिंट बैकलॉग, उसके ऊपर हम रिव्यू ले रहे हैं। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, हर स्प्रिंट में एक ही रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है, हर स्प्रिंट में एक, ठीक है। तो इसमें हम चेक करते हैं कि व्हाट वेंट वेल, क्या अच्छा क्या बुरा, ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। और लास्ट है कि प्रोडक्ट बैकलॉग रिफाइनमेंट, तो हम प्रोडक्ट बैकलॉग रिफाइनमेंट में हम चेक करेंगे कि कितना गया है, ओके, प्रोडक्ट बैकलॉग कितना बाकी है, ओके। प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरी, दैट इज व्हाट रिफाइनमेंट, सी हियर। सो आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ, ठीक है। तो फर्स्ट इज व्हाट स्प्रिंट प्लानिंग, अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट प्लानिंग का गोल क्या है, okay, team to plan and agree on backlog items. They can complete and confirm the task required to support acceptance. तो हमारा ये गोल है कि जो बैकलॉग है, मतलब यूजर स्टोरी है, उस पे उस आइटम पे वर्क करो, कंप्लीट करना है ना, एंड कंफर्म द टास्क रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एक्सेप्टेंस, ओके।
देन किस पे वर्क करना है, वर्क वही हम प्लान करते हैं उसमें, दैट इज व्हाट स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। ओके, सो टाइम इज रिक्वायर्ड यार। ओके, हु स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में कौन कौन रहता है? एवरीवन। ओके, दैट इज स्क्रम टीम, स्क्रम मास्टर एंड प्रोडक्ट ओनर। ओके, और स्प्रिंट प्लानिंग कम्स करते हैं बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंट, स्प्रिंट चालू होने के पहले। ठीक है, स्प्रिंट चालू होती है मतलब क्या होता है, हमारा टाइम ड्यूरेशन चालू हो गया। स्प्रिंट चालू हो गया मतलब क्या हो गया, इटरेशन, मतलब टाइम ड्यूरेशन चालू हो गया ना अभी हमारा, तो उस पे हमको सब लोग को काम दे दिया, आप सब लोग अब अपने काम करेंगे, उसको बोल देंगे स्प्रिंट, वो स्प्रिंट में करना है। तो ये चालू होने के पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं स्प्रिंट की। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं स्प्रिंट प्लानिंग। ओके, ये देखो एग्जाम इसमें दिखाया था मैंने अजाइल में, सेम। ओके, स्प्रिंट प्लानिंग। ओके, दैट इज व्हाट स्प्रिंट प्लानिंग, ये मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। हम्म। ठीक है, स्प्रिंट प्लानिंग के बाद हम डिसाइड करेंगे कमिटेड यूजर स्टोरी। ठीक है, जिस पे कमिटेड यूजर स्टोरी, देन हम यहाँ से स्प्रिंट चालू हो जाएंगी। ठीक है, मतलब हमारा टाइम चालू हो गया अभी, करो वर्क। तो यहाँ पे व्हेन वी गो फॉर द स्प्रिंट प्लानिंग, एवरी बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंट, हर स्प्रिंट के बिगिनिंग में हम स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं। ड्यूरेशन क्या रहेगा, 4 आवर्स फॉर द 2 वीक स्प्रिंट। ठीक है, तो 2 वीक स्प्रिंट, 4 आवर्स फॉर द 2 वीक्स ऑफ द स्प्रिंट, 4 घंटे। ठीक है, देन हाउ इन द टू पार्ट्स, कैसे, इन द टू पार्ट्स। पार्ट 1 डिफाइन व्हाट नीड्स टू बी डन। ओके, क्या करना है। पार्ट 2 हाउ टू अचीव द गोल। ओके, सो कुछ फॉलो करते कुछ नहीं करते, डायरेक्टली बहुत ही घाई रहती है सब लोगों को, भड़ 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 डाल देती है वो यूजर स्टोरी। ठीक है, तो चलो 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 चालू हो जाता है सब कुछ, बिगिनिंग करते हैं। स्प्रिंट प्लानिंग जैसे हो गई है, और 1-2 घंटे में इस वक्त खत्म कर लेते हो कि हमको क्या करना है। ठीक है, वर्क कैसे करना है वो डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन कैसा है कि स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड जैसे बुक में लिख के रहता है, बुक में लिखा वाला और रियल में करने वाला सब कुछ अलग रहता है। ठीक है, जो मास्टर शेफ की बुक आती होंगी उस पे लिख के होगा कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे, और रियली हम जब वो कुक करते हैं तो कुछ अलग ही होता है। ओके, और हमको रियल टाइम के हिसाब से हमको डिसीजन लेनी पड़ती है क्या नहीं। रियल टाइम के हिसाब से अब पानी डालना है कि नहीं डालना है, और गैस का फ्लेम कम करना है बड़ा करना है, वो आपके उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है रियल टाइम पे क्या चल रहा है। ठीक है नहीं, बुक के हिसाब से बोले कि आधे घंटे का पानी डालो, इधर जल भी जाएगा तो भी, सो ये हो जाएगा ना, क्योंकि बुक में लिखा है। लेकिन हमको रियल टाइम पे चेक करना पड़ेगा ना कि नहीं नहीं वो जल रहा है, तो भी हमको उसको फॉलो नहीं करना पड़ेगा जो बुक में लिखा है, क्योंकि वो जल रहा है ना। सो इसीलिए ये बुक की बातें है। ठीक है, दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड अजाइल प्रोसेस, ये सब कुछ होता है। छोटी कंपनी अलग टाइप से कर सब कुछ करते हैं, लेकिन एक्यूरेटली फॉलो सिर्फ एमएनसीज में होती है। और एमएनसीज के भी अगर बढ़ गए कि हमको जल्दी करना है, तो ये सब कुछ उतने हिसाब से करने पड़ेंगे जो हमको डेली जल्दी देना है उनको। ठीक है, उसके हिसाब से। सो जनरली ये है अभी कि 2-4 आवर्स लगेंगे स्प्रिंट प्लानिंग के लिए। 2 वीक स्प्रिंट होगा तो आपका, तो आपको 4 आवर्स लेने चाहिए प्लानिंग के लिए। और 2 पार्ट्स में आपको डिसाइड करो, उसमें एक पार्ट में आप डिफाइन करो कि क्या करना है, व्हाट टू बी डन, व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हाउ टू अचीव द दिस। वी आर गोइंग टू डू registration form, we required some heat requirement having this one. Okay, then how to achieve that one, we have something to achieve. Okay, so developer is there, tester is there, तो वो इतने टाइम में करेंगे उतना ऐसा। then we can check the input. Okay, priority, product backlog, acceptance criteria, capacity. Okay, based on the priority, everything is done on the priority basis. ठीक है, then product backlog, input, acceptance and capacity. so इसके लिए इसका input क्या रहेगा sprint planning का। ओके, प्रायोरिटी बेस एंड प्रोडक्ट बैकलॉग वहाँ से हम ले रहे हैं। ओके, देन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ओके, तो ये जो हम स्प्रिंट करने वाले स्प्रिंट प्लानिंग में, तो उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या रहेगा। ओके, व्हाट इज द कैपेसिटी, देन आउटपुट क्या रहेगा स्प्रिंट प्लानिंग का। ओके, स्प्रिंट गोल, स्प्रिंट बैकलॉग, टास्क एंड देयर एस्टिमेट, बर्न डाउन चार्ट। ओके, डीओडी, डेवलपमेंट प्लान एंड स्ट्रेटजी।
DOD एक डॉक्यूमेंट है ना, डेवलपमेंट एक डिफाइन डॉक्यूमेंट होता। ओके, सो इसको हम बोलेंगे कि डिफाइनेशन डन, डेफिनेशन ऑफ डन। ओके, और आई कैन से द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। हाँ, तो डेफिनेशन ऑफ डन। ओके, DOD मतलब होता है डेफिनेशन ऑफ डन। सो द स्प्रिंट प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू बी डिफाइन। ओके, what can be delivered in the sprint and what will be the duration. Okay, so DOD मतलब होता है कि definition of done. Okay, that is depend upon acceptance criteria also. Okay, acceptance criteria है। ओके, डेवलपमेंट एंड प्लान स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसका ये आउटपुट है। मतलब जैसे हमारी स्प्रिंट प्लानिंग खत्म हो गई तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया। ठीक है, हमको अभी पता चल गया कि हमको ये काम कैसे करना है और कितने टाइम में करना है। ठीक है, सब कुछ आ गया हमारे पास एस्टिमेटेड। ओके, सब कुछ। सो वैसे हमको वर्क करना है इन द स्प्रिंट प्लानिंग। बर्न डाउन चार्ट है नहीं? बर्न डाउन चार्ट जो रहता है ना, बर्न डाउन और बर्न अप चार्ट, ये एक चार्ट होता है। और ये कौन देखता है? स्क्रम मास्टर देखता है ये रोल। वो एक चार्ट ओपन करेगा, जैसे अभी हमारे स्प्रिंट चालू हो गई है, हर स्प्रिंट के हिसाब से तो वहाँ पे हर एक को टास्क दिए जाते हैं। तो इसमें चेक करते रहेगा कि कितना टास्क है, किसको असाइन किया है। ठीक है, और यहाँ पे इन वहाँ पे स्टेटस दिखेगा इन प्रोग्रेस। अगर वर्क करा तो इन प्रोग्रेस, किसी ने टास्क को एक्सेप्ट कर लिया तो इन प्रोग्रेस रहेगा, और डन हो गया तो डन रहेगा। फिर वहाँ पे पूरा प्रोग्रेस स्टेटस रहेगा कि वो ग्राफिकल में पता चलेगा कितने लोगों ने कितना टास्क किया है, हमारे प्रोजेक्ट का कितना परसेंट वर्क कंप्लीट हुआ है। ठीक है, कितना बाकी है। तो फिर ये बर्न डाउन चार्ट से हम वो डिस्प्ले करेगा, प्रोडक्ट ओनर को प्रेजेंटेशन करेगा। ये सब स्क्रम मास्टर करेगा। वो स्क्रम मास्टर को पता चलेगा कि कितना वर्क चल रहा है, कितना वर्क हुआ है, कितना वर्क बाकी है, पर स्प्रिंट और एवरी स्प्रिंट। ठीक है, हर स्प्रिंट के हिसाब से हो तो एक चार्ट रहता है, बर्न डाउन चार्ट बोलते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज स्प्रिंट प्लानिंग। देन डेली स्क्रम। ठीक है, डेली स्क्रम, डेली कॉल, डेली डिस्कशन। ओके, सो डेली डिस्कशन चलते रहेगा। प्रोडक्ट ओनर प्रेजेंट बैकलॉग आइटम्स इन प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर द रिव्यू। तो डेली स्क्रम मीटिंग में जैसे प्रोडक्ट ओनर रिप्रेजेंट करेगा बैकलॉग आइटम्स, तो क्या बैकलॉग्स है प्रायोरिटी बेस पे। ठीक है, और रिव्यू फॉर द रिव्यू आल्सो। तो देन रिव्यू एंड क्लैरिफाई यूजर बैकलॉग्स आइटम एंड यूजर स्टोरी यू कैन से। ठीक है, break down the larger story and each story into the task and acceptance the criteria। तो जो भी अगर यूज़र स्टोरी है, बड़ी यूज़र स्टोरी है, तो उसको हम छोटी कर देंगे, उसको हम टास्क में कंप्लीट करेंगे। ओके, एक एक टास्क को हम एस्टिमेट करेंगे आवर बेसिस। ठीक है, इस टास्क को हम इतने आवर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये टास्क को हम उतने, तो इसके लिए एक वर्ड दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसको, एक एक वर्ड होता है उसके लिए, कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, उसको बोलते हैं हम स्टोरी पॉइंट। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टोरी पॉइंट। तो ये इंटरव्यू में पूछेगा। ठीक है, स्टोरी पॉइंट ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। स्टोरी पॉइंट्स हाँ, इसको बोलते हैं स्टोरी पॉइंट। किस चीज को? मतलब टाइम को। स्टोरी पॉइंट मतलब होता है रफली एस्टिमेशन ऑफ द टाइम। तो ये स्टोरी पॉइंट डेवलपर भी देता है और टेस्टर भी देता है। सो रफली एस्टिमेशंस ऑफ द यूजर स्टोरी, रफली एस्टिमेशन ऑफ द यूजर स्टोरी। तो ये यूजर स्टोरी है, इस यूजर स्टोरी के लिए डेवलपर कितना टाइम लेगा और टेस्टर कितना टाइम लेगा, इसको बोलते हैं स्टोरी पॉइंट। स्टोरी पॉइंट मतलब टाइम। तो मान लीजिए कि कुछ कंपनी जो है वो वन स्टोरी पॉइंट इज इक्वल टू 1 आवर रहता है। ठीक है, वन स्टोरी पॉइंट इज इक्वल टू 1 आवर लेता है। और कुछ वन स्टोरी
वन स्टोरी पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रियल टाइम है। तो रियल टाइम में अब बोल रहे हैं कि हम वर्क किया है, वर्क कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बोलेंगे कि हमको पता नहीं, मतलब बहुत हो गया फिर। ठीक है, वर्क करे और ये पता नहीं। तो यूज़र पॉइंट, वन स्टोरी पॉइंट, ओके, स्टोरी पॉइंट दैट इज ये मैं आपको बताने वाला हूँ, डोंट वरी। ये जो है ना, मैं जीरा के पहले ना ये बताऊंगा। ठीक है, आजाइल प्रोसेस और एक्सप्लेन कर रहे हूँ तो, लेकिन अभी और याद रखो अच्छे से, क्योंकि जितने बार रिपीट रिपीट करेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना हमारे दिमाग में फिक्स रहेगा। भूलना नहीं है, बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, आजाइल बिल्कुल नहीं भूलना है। वन स्टोरी पॉइंट जनरली जनरली 1 आवर्स हो सकता है, और सम ऑफ द कंपनी दैट कैन बी फॉलो 1 डे आल्सो, और यू कैन से 1 डे मीन 6 आवर्स। ओके, बेस्ड ऑन द कंपनी। अब आपको ये नहीं बोलना है कि आपका जो स्प्रिंट टाइम है 2 to 4 वीक है, ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है, आपका स्प्रिंट टाइम कितना है? 2 वीक। ठीक है, स्प्रिंट टाइम कितना है? 2 वीक है। ठीक है, हम जो भी कर रहे हो 2 वीक के बाद हम स्टेटस दे रहे हैं। ओके, और उसके अंदर हम 14 दिन डेली स्क्रम मीटिंग चल रही है। ओके, तो देर आर द 2 स्प्रिंट इन अ वीक, सॉरी, इन मंथ 2 स्प्रिंट। एक मंथ में कितने हो गए फिर? 2 स्प्रिंट हो गए। ठीक है, स्प्रिंट टाइमिंग कितना है हमारा? 2 वीक। स्प्रिंट मतलब टाइमिंग, काय का टाइमिंग है हमारा? डिलीवरी का टाइमिंग। ओके, क्या हम डिलीवर करने वाले हैं, उसमें क्या वर्क, कौन से यूजर स्टोरी पे वर्क करके हम उसको आउटपुट देंगे। यूजर स्टोरी पे वर्क करके आउटपुट देना, उसको बोलते हैं स्प्रिंट। ओके, तो 2 वीक का है, एक स्प्रिंट हमारे 2 वीक की है, तो एक मंथ में हमारे 2 स्प्रिंट होती है, और एक स्प्रिंट में एक ही मीटिंग होती है। कौन सी? रेट्रोस्पेक्टिव, ओनली वन रेट्रोस्पेक्टिव। तो स्टोरी पॉइंट मतलब होता है 1 आवर्स, वन स्टोरी पॉइंट इज इक्वल टू 1 आवर्स, आर 1 डे, और 6 आवर्स। 1 डे मतलब 6 आवर्स। ठीक है, तो आप अभी एक डिसाइड कर लो कि क्या करना है। वन स्टोरी, आपको क्वेश्चन पूछेंगे आपका स्टोरी पॉइंट कितने का था, 1 आवर्स का था क्या 6 आवर का था? तो यू कैन टेक एज अ 1 आवर्स, या फिर 6 आवर, 1 आवर ले लो, क्योंकि कोई बात नहीं। ठीक है, कभी कभी 6 आवर का भी रहता बोलना, कभी कभी 1 आवर्स का भी रहता है, दिस इज डिपेंडेंट बोलना। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज 1 आवर्स। माई स्टोरी पॉइंट इज 1 आवर। ओके, 1 आवर, वन स्टोरी पॉइंट। तो इसको हमको लिखना पड़ता है। जैसे ये यूजर स्टोरी है, क्रिएट लॉगिन पेज, ये यूजर स्टोरी में लिख रहा हूँ विथ field, okay, something we can say the field username password, okay, username password and button also। ठीक है, ये यूजर स्टोरी है। अब इसको मैं टाइम दूंगा कि स्टोरी पॉइंट इज 5, मतलब मेरा स्टोरी पॉइंट कितना है? 1 आवर वाला है। एक स्टोरी पॉइंट मतलब 1 आवर, तो मैं यहाँ पे फिर 10 दूंगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, रियल टाइम में यही होता है। तो यहाँ पे स्टोरी पॉइंट डिसाइड करेगा कि ये, तो वैसे हमको टास्क असाइन होता है। ये यूजर स्टोरी, सेम टास्क गया डेवलपर को, डेवलपर डेवलप किया है, सेम टास्क हो गया टेस्टर को, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिटी, देन टू चेक दैट वन। ओके, टेस्ट दैट, देन ओके। हाँ, तो डेली स्क्रम मीटिंग, तो हम यूजर स्टोरी चेक करेंगे। अब देखो, रिव्यू करेंगे, क्लैरिफाई द यूजर बैकलॉग आइटम्स, है ना, break down the larger story into the each story, then you can into the task and acceptance criteria also। okay, so acceptance criteria मतलब मीट होना चाहिए कि सब कुछ रेडी है, then that can be accepted and we are going to do work on that। task are estimated in hours by the team। okay, जो टास्क हम दे रहे हैं उसको एस्टिमेट करेंगे इन आवर्स, दैट इज नोन एज यूजर, क्या बोला अभी मैंने, यूजर स्टोरी पॉइंट। ओके, यू कैन से द स्टोरी पॉइंट। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ, टुडे वी आर टू एग्जीक्यूट 50 टेस्ट केसेस, हाउ मेनी टाइम यू विल टेक, है क्या नहीं? ऐसा आपको पूछेंगे, तो हम रफली एस्टिमेट देते हैं। सो दैट इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी एंड सिवियरिटी। ओके, and the test cases we can identify, we need to do the some any installation process or environmental setup, so it will take the more time. If they were environmental is already set up, then it will take the less time for executing the test cases।
ओके, सो डोंट से द ब्लाइंडली इट विल टेक द समटाइम्स 2 आवर्स 4 और 5 आवर्स, है ना? ऐसे बोलने का बेस ऑन द समटाइम्स इन द इंटरव्यू दे विल आस्क द क्वेश्चन, हाउ मेनी टेस्ट केसेस यू आर एग्जीक्यूटिंग इन 1 डे, ठीक है? तो डोंट से द एनी पर्टिकुलर क्या बोलते नंबर, ठीक है? समटाइम्स हम 10 हम्म, एग्जीक्यूट करेंगे, समटाइम्स हम 40 भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक दिन में। ओके, तो ऐसा कुछ आंकड़ा बताना नहीं है, बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी एंड सिवियरिटी, बेस्ड ऑन द व्हाट टाइप ऑफ द टेस्टिंग, बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल सेटअप। ओके, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कितना टाइम लगेगा। तो टेस्ट केसेस तो जनरली ऑन ऑन एवरेज तो 20 से लेकर 30 टाइम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज। बट इसको ये बताने के पहले हमको आंकड़ा ना बता के प्रायोरिटी सेवेरिटी ये सब कुछ इशू बताने हैं, एनवायरमेंटल सेटअप, ओके, रिक्वायरमेंट फंक्शनलिटी कितना था। तो क्योंकि फंक्शनलिटी ज़्यादा रहती है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा ना। टेस्ट डेटा के ऊपर भी डिपेंड है, कितना टेस्ट डेटा है, हम्म, कितने डेटा को टेस्ट करना है क्या नहीं? यूज़र नेम पासवर्ड चेक करना है और आपको 10 यूज़र का डेटा दिया, तो 10 टेस्ट डेटा कितना हो गया? 10 यूज़र का टेस्ट डेटा हो गया ना, हर यूज़र को टेस्ट करना है, अगर अकॉर्डिंग टू टेस्ट डेटा तो टाइम लगेगा कि नहीं? एक ही टेस्ट केस आपको 10 बार एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है विद डिफरेंट ऑफ डेटा, विद डिफरेंट डेटा ना, है क्या नहीं? हम्म, तो एक ही टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन पेज की, ओके, वैलिडेटिंग द रजिस्ट्रेशन, ओके, और टेस्ट डेटा क्या रहेगा हमारा? 10 यूज़र का, तो इसका मतलब 10 टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम उसको, तो टाइम जा रहा है। ओके, दैट इज डिपेंडेंट, इसीलिए वो डिपेंड करता है कि आप कितने कैसी टेस्ट केसेस की फंक्शनलिटी कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड है। और अगर आपको यूआई बेस्ड, अगर आपने लिखा है टेस्ट केसेस यूआई बेस्ड, ओके, वेरीफाइंग द जीयूआई बेस्ड टेस्ट केसेस, मतलब यूजर एबिलिटी कैसी है उसको, ग्रामेटिकल मिस्टेक, हाँ, अलाइनमेंट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, इसके रिगार्डिंग को कम लगेगा, इसको ज़्यादा नहीं लगेगा, है क्या नहीं? स्टैटिक ये फॉन्ट बराबर है कि नहीं, ये बराबर है कि नहीं, ये चेक करने के लिए कम लगेगा टाइम। ओके, so that is dependent. So here we are going to identify, so the task estimated in hours, okay, developer and tester assign to task, okay, ये डेली स्क्रम मीटिंग में टास्क असाइन हो जाता है कि आज आपको ये टास्क करना है, डेली वी आर गेटिंग द टास्क, ठीक है, डेली पूरा डेली टास्क मिलेगा आपको, डेली आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है, सब मिलेगा, ठीक है? पहले मीटिंग करेंगे, बड़बड़ बड़बड़, फिर उस पर टास्क दे देंगे। वही बैंक में वगैरह, प्राइवेट बैंक में भी यही होता है, और सबसे ज़्यादा देखो बिजनेस में जितनी ज़्यादा मीटिंग होगी ना उतना प्रोग्रेस रहता है। जहाँ पे मीटिंग नहीं होती है ना वो बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है, हम्म, ठीक है? आप प्राइवेट बैंक्स देखो, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक से इतने डेली डेली सवेरे 9 बजे मीटिंग खड़े रहो, 15-20 मिनट टाइम पास करो, है क्या ना, चलते रहता है ये हर इसमें। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा मीटिंग होती है, प्लानिंग होती है ना, वही बिजनेस आगे रहता है, इसलिए वो सबसे आगे रहते हैं। प्राइवेट में यही एक रहता है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट में जाएंगे तो वो फिक्स हो जाते हैं, हमको ये काम करना है, कुछ डेली टास्क नहीं रहता नया, बाबू वही काम करेगा, ठीक है, ऑफिसर साइन मारने का काम करेंगे उतना ही, ठीक है, आईएएस हो जाओ, कितना कुछ भी हो जाओ, नो टास्क। बट इन द प्राइवेट सेक्टर वी हैव द डेली टास्क, और हमारा जो ब्रेन है हमारा बिल्कुल एक्टिव रहता है, और उनका जो ब्रेन है सर्टेन टाइम पीरियड पे वो सोचने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। और हम्म, हमको आईटी में या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में हमको डेली सोचना पड़ता है, डेली हमारा ब्रेन को एक्टिव रखना पड़ता है कि हमारे पास आज क्या टास्क आ सकता है और उसमें हम आज क्या वर्क करेंगे, ठीक है नहीं? सो दैट्स वाई, क्योंकि हमेशा क्लेवर रहते हैं आईटी में, मतलब सॉरी आईटी मतलब प्राइवेट सेक्टर में लोग, तो इसलिए वो बिजनेस बनाते हैं बड़े बड़े, और उसकी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफिसर्स लेते हैं, है क्या नहीं? बड़े बिजनेस बनाते हैं क्या नहीं, लोगों को, जैसे क्या बोलते हैं हमारी कैब की, ओला की सर्विस, है ना, उबेर, ओला, देन हाँ, जैसे अभी मैकडोल हो गया या फिर अपना स्विगी हो गया, ये बड़े बड़े, तो ये कौन यूज़ करते हैं? सभी तो यूज़ करते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफिसर से लेके उनको भी सॉफ्टवेयर चाहिए, वो भी आईटी वालों ने बनाया है, गवर्नमेंट खुद तो कुछ बनाते नहीं है, है ना, डेवलपमेंट आईटी कंपनीज में है नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वो एक यूज़ किया था कि एमकेसीएल डाला है आईटी कंपनी गवर्नमेंट की, उसके भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं, तो मैक्स उसमें वर्क नहीं होते,
तो कहने का मतलब ये है कि उनको प्रॉपर गवर्नमेंट सेक्टर में जो वर्क होता है वो डेडिकेट मतलब जो है वही वर्क होता है, जो आपकी जॉब प्रोफाइल है सालों तक उतना ही वर्क होता है। आईटी इंडस्ट्री में या फिर प्राइवेट सेक्टर में हमको डेली नया टास्क रहता है, इसलिए हमारे ब्रेन्स एक्टिव रहते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सर्वाइव करना पड़ता है, इसलिए जो प्राइवेट वाले हमेशा आगे रहते हैं। ठीक है, सिर्फ अभी रहे तो रहे प्रॉब्लम सैलरीज में, तो उनको कैसा कि फैसिलिटी और सैलरी ज़्यादा रहती है ना। तो फिर आईटी सेक्टर में और इसमें भी प्राइवेट में तो अनलिमिटेड सैलरी है, लेकिन गवर्नमेंट में कैसा कि पर्टिकुलर स्केल पे फिक्स हो जाती है, एंड हो जाती है वो। ठीक है, और प्राइवेट में अनलिमिटेड है, यू कैन अर्न एज पर यूर टैलेंट। है क्या नहीं, आप सीईओ भी बन सकते हो ना, कंपनी के सीईओ बन गए, आपके उसमें बहुत सारे शेयर्स आ गए। माइक्रोसॉफ्ट के भी सीईओ अपने इंडियन हैं, अभी तो गूगल के सीईओ भी अपने इंडियन हैं। है क्या नहीं, सीईओ भी बन गए ना, तो हर पोजीशन पे जा सकते हैं। सो अब की सैलरी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब मान लो कि अपने राष्ट्रपति ले लो या पंत प्रधान ले लो, है क्या नहीं, तो सैलरी नहीं है लेकिन पावर है। और आईएएस ऑफिसर ले लो या दूसरे हाईएस्ट पे, लेकिन कहने का मतलब कि सैलरी इतनी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो अलग पार्ट हो गया एक सेक्टर, ये एक सेक्टर अलग है। बट यू हैव टू डेली डू दिस वन। मेरा कहने का मतलब कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मीटिंग और प्रोग्रेस रिपोर्टिंग होती है वो ऑर्गेनाइजेशन सबसे आगे जाती है। ओके, अब यही सेम चीज़ेस गवर्नमेंट ने लाना चाहिए। ओके, गवर्नमेंट सेक्टर में ये सब चीज़ें आनी चाहिए, है क्या नहीं, तो उनका भी बिजनेस आगे बढ़ सकता है, तो फिर सब कुछ बराबर हो सकता है ना। लोग फिर प्राइवेट स्कूल में नहीं डालेंगे, हम गवर्नमेंट स्कूल में रखेंगे सबको उसके हिसाब से। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे डेली स्क्रम मीटिंग डिस्कशन कि क्या हो सकता है, एस्टिमेटिंग टास्क, ओके, आउटपुट क्या होगा, स्प्रिंट प्लानिंग का, ये सब हम यहाँ पे डेली स्क्रम मीटिंग में आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, आपको बताते जाएंगे ये करना है, वैसा करना है, आपको ये करना है, ये हो जाएगा। फिर उसमें बोलो आप जैसे लग रहे हो वैसे ही चाहिए, हाँ, जैसे फोटो दिख रहे हैं वैसे ही वर्क होता है। तो ये सबको अभी कॉल पे होता है, रिमोट वर्किंग है ना, तो कॉल 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 पे होता है। अगर वो रिमोट वर्किंग नहीं होगा तो फिर वैसे चलो रूम में चलो, चालू मीटिंग आए बराबर चालू। ठीक है, फिर वर्क करो। ओके, सो तो डेली स्क्रम में ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, और उसमें उसका गोल क्या है कि डेली स्क्रम का व्हाट इज़ द आउटपुट, व्हाट इज़ द गोल। ओके, सो प्लान फॉर द डे, इंस्पेक्ट एंड अडॉप्ट द डेली टूवर्ड्स द रीचिंग द स्प्रिंट गोल। ओके, आज का दिन का हमको जो वर्क दिया है उसको कंप्लीट करो। ओके, दैट प्लान एंड अडॉप्ट। ओके, इंस्पेक्ट एंड अडॉप्ट। देन कौन कौन इन्वॉल्व होता है डेली स्क्रम में, स्क्रम मास्टर, ओके, स्क्रम टीम, स्क्रम मीन्स प्रोडक्ट ओनर एंड डेवलपर टेस्टर। ओके, व्हेन डेली थ्रूपुट द स्प्रिंट, ओके, थ्रू आउट द स्प्रिंग, सॉरी, डेली थ्रू आउट द स्प्रिंट। ओके, सो जब तक स्प्रिंट कंप्लीट नहीं होती तब तक चलती रहेंगी डेली। ओके, ड्यूरेशन 15 मिनट्स ऑन मैक्सिमम। ओके, उनको लगा कि ज़्यादा बड़बड़ करना है तो वो ज़्यादा भी ले सकते हैं। ओके, सो 15 मिनट्स ऑफ द मैक्स ड्यूरेशन। तो बहुत कुछ वर्क होता है यहाँ पे। डेली स्क्रम मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड हाउ द टीम members form a group to focus on daily plan, discuss on issues faced yesterday also. ओके, तो अभी कैसा कि डेली स्क्रम मीटिंग में ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि अगर आपने कुछ आइडेंटिफाई किए इश्यूज, कुछ डिफेक्ट रिपोर्टिंग आ गया या फिर कुछ अलग टाइप के इश्यूज आ गए, और वो जो इश्यूज आ गए हैं वो उसके ऊपर हम अभी वर्क करेंगे या बाद में वर्क करेंगे। ओके, ये हमको डिस्कस करना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो डेवलपर को कुछ इशू आ सकते हैं, दे हाउ टू डिस्कस। टेस्टर को कुछ इशू आ सकते हैं, दे हाउ टू डिस्कस। ओके, डेली प्लान में ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। कल क्या इशू आए थे वो भी डिस्कस करो। ओके, और तो फिर ये जो इश्यूज आए हैं वो नेक्स्ट स्प्रिंट में यूज़ करेंगे, मतलब वर्क करेंगे, या इसी स्प्रिंट के अंदर वर्क करेंगे, डेट इज़ डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये बाद में डिसाइड होगा, लेकिन हमारे जो इश्यूज है वो पहले एक्सप्लेन कर लो कि हमको ये प्रॉब्लम है। सो इनपुट स्टेटस,
इनपुट क्या रहेगा इसका, तो करंट स्टेटस, रिस्क एंड द वर्क डन। ओके, डन वर्क। ओके, व्हाट इज द करंट स्टेटस, क्या है, रिस्क क्या है, ओके, एंड व्हाट विल बी द रिस्क एंड डन द वर्क। ओके, तो आउटपुट क्या आएगा, प्लान फॉर द डे एंड टास्क टू वर्क। ओके, सो हमारा जो डेली स्क्रम मीटिंग का जो आउटपुट है वो है हमारा वर्क, जो हमने प्लान किया था वो वर्क हुआ कि नहीं। ओके, डेली प्लान करो क्या करना है, टास्क असाइन करो, डेली असाइनिंग द टास्क, लॉग इन करो, जो वर्क आया है देखो, ओके, और उसको कंप्लीट करो एंड ऑफ द डे में। ठीक है, दिस इज द गोल। तो ये हमारा डेली स्क्रम मीटिंग में वर्क होता है, डेली स्क्रम में ये वर्क मीट क्या बोलते डिस्कशन होता है और हमको वर्क करना पड़ता है कंप्लीट। Okay, so daily development team stand up for the 15 minutes in circle and talk only on the 3 point. Okay, now this is very important. सब लोग आ गए हैं 15 मिनट की मीटिंग में। What I did since last daily scrum meeting. Okay, what I am planning to work on today and impediments, okay, means issue or blocker if any, and scrum master protect the team and facilitate for the being effective, facilitating and applying the other principle. This gives an opportunity to the team to inspect and adapt daily on the sprint goal. Okay, so just we are going to focus on that what we are did the last day. Okay, and what planned today and whatever any issue what we are going to also do, and tomorrow also हम क्या करने वाले हैं, okay, today and tomorrow. Okay, so कुछ issue blockers आए हैं ये चेक करना, okay, so that everything we are going to discuss in the daily scrum meeting, that is stand up call. ठीक है, ये 15 मिनट का स्टैंड अप कॉल रहेगा। ओके, वर्क करना है, वर्क करना है, वर्क करना है, ये आज वर्क करना है, ये इस पे करना है, कल का क्या स्टेटस था, आज का क्या है, तो ये डेली चलेगा स्प्रिंट में। ओके, 14 दिन के स्प्रिंट में ये डेली स्क्रम मीटिंग चलते रहेंगे। अब आपको और एक बार रिपीट करो ये डायग्राम। ठीक है, ये देखो, 2 week ऑफ द स्प्रिंट हैविंग द एवरी 24 आवर डेली स्क्रम मीटिंग। हम्म। ठीक है, तो ये आंखों से ज़्यादा देखते रहो, ये समझ में आएगा फिर। इसलिए मैं और एक बार ये एक्सप्लेन करने को, तो और एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जिसमें मैं आपको